Hello all. I guess we have many participants now in the meeting. So I see from the list we have Harsh, Palash, we have Divya, Darshan, Shruti, Riya, Lalita, Divya. Okay, I hope I'm audible to all of you. In case you cannot hear me at the moment, please just message on the chat box if you feel that the audio is not clear. Okay, I'm getting some messages. All right. So guys and girls, I believe you already know that Practica is one of the leading IELTS training as well as visa consultants in Vadodara. And not just Vadodara, they have been serving students, clients from across borders as well. I have the opportunity to present a master class on behalf of Practica, and I'm feeling really grateful for that. Today, we will be discussing a little bit more about what are the modules in IELTS and specifically into the listening and reading section. So I hope all of you are comfortable, and it's 3 p.m. now on my clock. So I'm going to start at 3:05. So just in case, if anyone wants to probably grab a glass of water, or maybe it's better to keep a notepad and a pen handy in case you don't have that. So I would just request you to do that right now. All right. So let me start with myself first. So my name is Shashank Sharma. And as of now, I live in Meerut city, which is it's a pretty big city actually in Uttar Pradesh, pretty close to New Delhi. And my experience with IELTS has been really nice. First of all, I was into spoken English training actually, and everybody told me that I should also start teaching IELTS. But obviously, I did not know much about IELTS and what was the whole scenario about. Just a moment. I want to just check if the screen share is still visible. Hold on. Yes. So like I was saying that many of my folks told me to actually start taking IELTS sessions also. But obviously for that, I had to prepare for IELTS and know what it's about. I had to give pretty many mock exams as well as the original exam just to test my capacity. I was able to score a 9 in speaking, which was like phenomenal for me also as an experience, an 8.5 in writing, and my listening and reading scores was 7.5 each. So one thing kept telling me that what's there about listening and reading? I mean, as someone who expresses himself pretty well when it comes to speaking, and the writing is accepted so well by the international community. What's missing about the listening and reading? So it so happened that at the same time, one of my best friends had also written IELTS. He's a doctor, and he was applying for abroad. So he told me very frankly, he said, listening ka kuch nahi ho sakta. Yeah, I hope all of you understand Hindi. We are in India. So I'm going to make it bilingual, Hindi, English. I guess many of you are Gujaratis also, but my Gujarati is not all that great. Okay. So yeah, like I said, उसने मुझे बहुत आराम से चैलेंज करके जैसे बोल दिया कि यार लिसनिंग का कुछ नहीं हो सकता, तो कितनी भी बार दे दे, no, even if you give 11 times listening or 25 times listening, it doesn't matter, your listening score doesn't improve. So that kind of hit me. I was like, there must be something. Now why it hit me? Because I remember practicing listening tests. I was initially getting 7 and 7 straight, and then obviously I moved to 7.5. So, but again, it was a doable score for me. My focus was more on speaking and writing though. So later, after the exams, I thought, chalo, this is the right time. Ab hum dekhte hain listening mein kaise score leke aate hain. So I remember every day I took one test
each, and my average score was still 7.5 after 1 week of taking many tests. Again, I was like, अरे अभी तक तो बढ़ जाना चाहिए था listening का score. So I just started seeing कि किस time पे ज़्यादा बढ़ता है, किस time पे नहीं बढ़ता है, evening में बढ़ता है कि morning में बढ़ता है. Started observing these things. Then again, I took a couple of more tests, and the result had come to 8, but getting a 9 was just not happening. And then I thought that nahi, kuch to missing here. There is something not exactly happening the way we want the listening scores to improve. And I have a feeling, see, I have taught almost, I think, 500 to 800 students, I guess, that I have lost count so far in IELTS alone. And सब लोग मुझे यही बात भी कहते हैं कि सर 4-10 बार लिसनिंग किया या 25 बार किया लिसनिंग का टेस्ट, वो स्कोर नहीं बढ़ता है. So we will be discussing about these things also. Similarly, about reading. When I had written my IELTS, it was about the general training. But then reading में जब academic में मैं आया तो एक अलग challenge मैंने देखा था. That was obviously the speed, because academic में काफी lengthy. You will notice the essays or the articles are really lengthy. Okay, so we are going to discuss about these things in detail now. So जिन लोगों ने पहली बार आज IELTS के बारे में जानना चाह रहे हैं या लिसनिंग और रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं फिर भी थोड़ा सा भी रिकैप करता हूँ. And I do have something coming up on the chat. Let me see if there is any direct message for us. Okay, Hindi is fine. Great. Thank you, Shishir. All right. Okay, so yeah. As you all know कि हमारे लिसनिंग में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है, और आपको काफी बार एक वर्ड सुनाई देगा LRW. आप कभी LRW गूगल करेंगे तो आपको किसी फैक्ट्री का नाम समझ में आ जाएगा या कुछ और. सो IELTS का जो आपको मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं, वो भी LRW scheduled on this particular day, LRW etc. So LRW is nothing but a short for listening, reading and writing. So over here आपने mention देखा होगा कि यहाँ पे 40 minutes लिखा है listening का. But in reality, the test is only for 30 minutes. But why 40 minutes? Because there is a difference between online tests, which is called as a computer-based test, and then there's the paper-based test, which is a traditional test actually. And अभी कुछ time से काफी changes हुए हैं paper-based test, online, computer-based test में. उसके बारे में भी हम थोड़ा discuss करेंगे. So एक जो major मैं आपको difference बताना चाहता हूँ, I would want to highlight one thing, is that listening, reading and writing is not your typical subject paper. जैसे आपने maths लिखा हो या English के papers लिखे हो exactly. This is a very different ball game altogether. इसमें कोई course material नहीं है आपके पास, right? And ये काफी लंबा test है. वैसे तो आप अगर calculate करोगे 40 plus 60 plus 60 is just 2 hours 40 minutes. But क्या IELTS का exam exactly 2 hours 40 minutes का होता है? Not at all. It is 3 hours to 3 hours 40 minutes, depending upon आप paper based कर रहे हैं या computer based कर रहे हैं. But why I'm saying that is because the message will be pretty much clear to you. You are supposed to enter the hall at least 30 to 45 minutes in advance. और जब आप आते हैं, आप अपने phones, अपना पर्स, अपना even belt, do you imagine these days belt भी रखवा लेते हैं. छोटे-छोटे clippings कुछ होते हैं जो उनको लगता है कि could be used for technical purposes. So काफी strict है IELTS का जो I would say ambience होता है. So आप और कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज होती नहीं है except for your pencil, your eraser and your sharpener. अगर आप एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर पेपर बेस्ड वर्जन में, अगर कंप्यूटर बेस्ड में एंटर करें तो वो भी आपको अलाउड नहीं है. ओके, सो बट ऑल दिस सेटलिंग एक्टिविटीज एंड अदर स्टूडेंट्स आर कमिंग एक्सेट्रा, दिस टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम, और आप 30 मिनट्स ऑलमोस्ट आप साइलेंटली बैठे हैं. तो जब आप 30 मिनट साइलेंटली बैठे हैं, क्या हमें एग्जैक्टली आजकल आदत है 30 मिनट्स ऐसे ही बैठने के लिए? सी, आप लोग जब स्टूडेंट्स थे तो फिर भी आपने कभी ना कोई कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड देखा होगा, मगर IELTS इतना वेटिंग पीरियड आप नहीं देखेंगे. सो ये जो टेस्ट है ये बीच में भी कभी कभी लंबे जाते हैं और बाद में भी आप नोटिस करेंगे कि काफी लंबा टाइम स्पेंड हो जाता है जस्ट इन द होल प्रोसेस. Okay, so you need to be mentally prepared
कि आप almost 3 to 4 hours without any you can say edibles and just water is what you are going to survive on. Okay, so I'm keeping an eye on the chat box just in case if somebody wants to ping. Obviously, we will take the questions at the end also. Okay, so the listening has 4 sections and it's for 30 minutes. But so 30 minutes, 4 sections, how do you divide it? Normally 28 minutes का होता है, 7 minutes एक section play होता है. So in that 7 minutes also there are different categories. For example, social conversations होते हैं section 1 और 2 में, section 3 और 4 में आपके academic level के topics मिलते हैं. And then yeah, in reading it is a 60 minutes with 3 sections. और इसके timing को काफी लेके अभी तक I would say doubts हैं लोगों की how to. Is it just 20 minutes or is it some other way? But we will discuss this also shortly. Okay, so as I was talking about computer delivered test and paper delivered test, I am someone who wrote my IS exam almost 4.5 years ago now, and तब obviously paper based test ही चलते थे, and I was in the last batch who was allowed a pen. In fact, after that even pens were banned. What I would like to tell you is कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट में आके काफी एक तरह गेम चेंजर हो गया है. Why? Because the LRW not only finishes at least almost an hour before paper based test. The story is because इतने सारे पेपर एक्सचेंज हो रहे हैं. लिसनिंग में आपको पहले क्वेश्चन शीट्स मिलते हैं, उसके बाद एक आंसर शीट आ जाती है जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हैं. द ऑडियो चेकिंग एक्सेट्रा, यू नो, सो मेनी थिंग्स हैपन. लिसनिंग के बाद भी आपने जब 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेके आपने पूरा पेपर आंसर शीट भर दी है, उसके बाद वापस वो लेंगे, फिर कुछ देर के बाद ही रीडिंग का आपको मटेरियल मिलना स्टार्ट होगा, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 20 मिनट्स गैप. रीडिंग में भी ये प्रोसेस होंगे, पेपर लेना पेपर देना, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर बेस्ड टेस्ट. सो उसके बाद वापस टाइम वेस्ट होगा. राइटिंग में अगेन टिल द एंड आपको काफी टाइम तक बैठना पड़ेगा. ठीक है, तो a very long test. I was 3.5 hours तक लोग बैठे हैं IELTS के reading paper based test में, और it becomes tiring to be frank with you. But when you come to computer based test, ये काफी जल्दी खत्म हो जाता है. Almost 3 hours में they wind up the whole test, and which is really less stress on yourself. Plus इसके results आप देख सकते हैं 5 to 7 days में आ जाते हैं. In fact 3 days में भी आ रहे हैं आजकल. और पेपर बेस्ड टेस्ट 13 days इज एन अंडरस्टेटमेंट. मैंने मोस्ट ऑफ माय पेपर बेस्ड टेस्ट स्टूडेंट जिन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट 17 to 18 days का तो वेट रहा ही है. 13 days आप कह सकते हैं वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं ये लोग. तो 21st डे ऑलमोस्ट आपको इसका रिजल्ट मिलता है. ओके, so having said that, again another why I'm again a strong advocate of computer based test is because of writing. जो पार्ट अभी मैं कवर कर नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि 250 वर्ड्स का ऐसे या 300 वर्ड्स का ऐसे और प्रोबेबल लेटर्स आपने कब लिखा होगा, वो भी पेंसिल से लास्ट टाइम आपने, राइट. we almost have forgotten to use pencil. See, पेन का अगर सीन होता तो बहुत ही अलग होता, but again it's pencil, okay, and that is also not too clear to read. बट अगर आप जब कंप्यूटर पे होते हैं और आपके पास एक डिसेंट टाइपिंग स्पीड है, यू कैन मेक अ नोट एटलीस्ट 23 to 25 वर्ड्स पर मिनट की भी टाइपिंग स्पीड है. सो यू कैन डू वंडर्स विद राइटिंग, especially all kind of editing, sentence refragmentation, paraphrasing, everything can happen on the go without scribbling or without any overwriting done. So this is a really wonderful I would say module, the computer based test, and my suggestion is that अगर आपकी बस राइट टाइपिंग स्पीड कम है तो आप बहुत आराम से गूगल पे टाइपिंग स्पीड का कोर्स लेके you can start with this. And listening and reading has also become pretty friendly. I will show you some slides on that. Okay, so the big question, IELTS academic or IELTS general. अगर आपने अभी तक अपने किसी भी वीजा कंसल्टेंट से बात करी है, अगर नहीं करी तो आई वुड जस्ट रिकमेंड आप प्रैक्टिका को अप्रोच कीजिए. दे हैव अ वंडरफुल टीम टू गाइड यू.
कि आपको जनरल ट्रेनिंग में आना चाहिए या IELTS के एकेडमिक में आना चाहिए. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स at the end changing their IELTS from general to academic or vice versa because उनको एग्जैक्ट बिकॉज उनको एक नया आइडिया मिल जाता है, एक पावरफुल आई वुड से कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं जो बता पाते हैं कि आपको कितने फायदे हैं वीजा में or probably other things. I'm not too much into the visa category, but I can tell you that from my students' experience, from my experience of teaching students, they have always come happily, especially from Praktika, saying that they got the right solution. Okay, so as you can see, let's us highlight on the listening and reading part 4 recorded monologues and conversations. So the section 1 is always a conversation. Section 1, you can make a note of that. The listening, section 1 is a conversation. Section 2 is a monologue. Section 3 is a conversation between 3 people. And then the section 4 is an academic, almost like a TED talk, which we will discuss more about. And in the reading, there will be 3 long passages in the academic version, but in the general training, it's a completely different ball game altogether. It just tests your general knowledge of form filling, reading pamphlets, understanding what has been shown to you in a general world. But academic is designed in such a way that you prove yourself that you are a good student. So इनकी practice भी थोड़ी अलग होती है. और अगर आपको reading में कहीं भी challenge आ रहा है, so it is better to consult a mentor before approaching like self-practice, because there's so many things that we miss out on practices. Again, we are going to discuss few of them in the session. Okay. So IELTS के एग्जाम में कोई फेल नहीं हो सकता, right? You can either be expert, very good, good, competent, or modest user. But most of the visa consultants will tell you, and especially if you're applying for academic or general training, that you must be at least a competent user. And what do they say here? Has generally effective command on the language despite some inaccuracies. Can use and understand fairly complex language, particularly in familiar situations. Yeah. तो अगर आप देखा जाए तो ये चीज इंडिया में बहुत कॉमन है. कॉम्पिटेंट यूजर्स आपको कॉल सेंटर्स में मिल जाएंगे, आपको नॉर्मली किसी भी कॉर्पोरेट में मिल जाएंगे. ऑब्वियसली आपके खुद के पेरेंट्स ऑलमोस्ट कॉम्पिटेंट यूजर की कैटेगरी में होंगे, बट अ गुड यूजर विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ मोर रेंज ऑफ English language or grasp on English language. और ये जो पार्ट आता है ये स्पेशली आपके रीडिंग और लिसनिंग से आता है. Either you are a good, very good, or an expert user is more about your reading and listening. Okay, so how do you become a good reader? How do you become a good listener, right? And how do you make that powerful statement to the IELTS also, IELTS community, that yes, I am well prepared to go abroad. I have this. I'm a very good user, or I'm an expert user in the language. So ये इस पे हमें work करना है. But one thing, one precaution, or you can say one, terms and conditions, I can tell you that this cannot happen overnight. अगर हम British Council, Cambridge and IDP, who are the main bodies of IELTS, governing bodies of IELTS, उनसे पूछें तो अगर आप आज की तारीख में competent user है, you get a 6 band, और आपको A में 7 band लाने का, it will take you 2 months time to come to that level. And how do you come to that level is not just sitting at home and practicing tests. No, it's a different ball game. How are you going to develop your variety of wide range of vocabulary? How are you going to develop your range of listening and whatnot? So जैसे आप इस वक्त आप देखिए अपने हिस्ट्री के हिसाब से देखिए, अगर आप अपने खुद के ही पैटर्न के हिसाब से देखिए, आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आप इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्टेड है. ओके, और आज की तारीख में अगर आप 6.5 बैंड लेके आ जाते हैं खुद से ही, ठीक है, और आपको एम दे रखा है 7.5 का, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, एंड दैट एफर्ट इज जस्ट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू टाइम बेसिकली. ओके, सो उसके भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं. Like I said, it's not all about giving tests. Okay, so
I don't see any messages. Hopefully everything is going smooth then, because I may get some message like sir आवाज नहीं आ रही है, yeah, but ऐसा hopeful नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश अभी वापस मिक्स करूंगा. I have a habit of going completely into English sometimes. Okay, so जनरल अगर हम रीडिंग, अभी हम पूरा रीडिंग के बारे में बात करते हैं और एक बार देखते हैं कि स्कोर कैलकुलेशंस क्या दे रखी है. आप नोटिस करोगे कि जनरल रीडिंग का स्कोर कैलकुलेशन काफी डिफरेंट है. इन जनरल ट्रेनिंग अगर मैंने 30 करेक्ट आंसर्स ले लिए ना, लाइक ये 30 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 40, तो भी मुझे सिर्फ 6 बैंड मिलते हैं. ठीक है, और मेरा IELTS क्या बोलते हैं जनरल रीडिंग में था जब जब मुझे मेन एग्जाम में 4.5 years ago 7.5 मिला था. सो आई गॉट ओनली 4 मिस्टेक्स, फिर भी मुझे 7.5 बैंड दिया था. ओके, बट अगर मैं यहाँ पे एकेडमिक में आ जाता हूँ तो 30 राइट आंसर्स में आपको 7 बैंड्स मिल जाते हैं और 36 राइट आंसर्स में 8 बैंड तक आ जाता है. राइट, सो व्हाट इज दिस टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप जनरल ट्रेनिंग वाले अगर हो तो आपको आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, what you have read, you have exactly understood the meaning, and your inference, your perception is perfect, and now you know the right answer. Okay, and you have displayed it. मगर academic में थोड़ा ball game different है. Academic is काफी subjective होता है actually. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैरी कॉम वन दी ट्रॉफी इन 2020, ठीक है, और आपको चेक करना है कि हाँ सॉरी 2020 में तो नहीं हुआ था, 2016. ओके, सो लेट्स से एग्जांपल मैरी कॉम वन अ ट्रॉफी इन 2016 और हमें बस नॉर्मल एक चेक करना है कि हाँ इज दिस ट्रू पर्सन नॉट गिवन, तो काफी आसान होगा. हमें डिटेल एग्जैक्टली दी हुई है. बट जनरल ट्रेनिंग में कैसे बोलेंगे यही सेंटेंस राइट आफ्टर द 20 फॉर एग्जांपल या अ डेकेड ऐसे बोलेंगे. A decade later, Mary Kom had won her biggest title that was being awaited for almost 5 years since 2012. अब काफी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे. 10 years पहले से उन्होंने बात कर रहे हैं कि वेट कर रही है और 5 साल पहले से उसने ट्राई किया हुआ है. अभी और उसने क्या बोलते हैं 2 आई थिंक हाँ 5 years के बाद जीता. तो हम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली कहाँ से क्या बात कर रहे हैं और तब जाके 2018 का वो सॉरी 2016 मेंशन करेंगे. लाइक आप कैलकुलेट करोगे हाँ 2011 से ऐसे ऐसे करके हो. तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है जनरल ट्रेनिंग में. आपको रुक के थोड़ा सोचना पड़ता है कि आपने क्या पढ़ा. मगर एकेडमिक में आपको रुकना नहीं है. आपने जो पढ़ा वो काफी क्रिस्प एंड क्लियर होता है. बस इसमें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ज्यादा काम आती है और जनरल ट्रेनिंग में आपकी आई वुड से जो कॉग्निटिव स्किल्स है, थिंकिंग एबिलिटी, थोड़ा लॉजिकल चीजें भी आपके इसमें काम आते हैं. ओके, that being the difference in reading from general and academic, but there are few things that we must never do when we are talking about the reading. So let us have a look at what we must not do. सबसे बड़ी इशू जो मैंने भी खुद में देखा था is become a clock victim. मेरी आदत ये थी कि मैं कर रहा हूँ, आधा पैसेज हुआ, मैंने टाइम चेक किया, फिर वापस आधा पैसेज हुआ, टाइम चेक किया, अच्छा फिर 2 मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ, अच्छा ये बचाया, उतने में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा. बहुत ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं क्लॉक विक्टिमाइजेशन में पड़ जाते हैं और ये हमें नॉर्मल मेंटल अवेयरनेस के साथ चलना है, नॉट टू डू दैट. ओके, आप नोटिस करोगे दूसरा, डू नॉट सब वोकलाइज, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं. सो आप दूसरा नोटिस करोगे कि आप जब ज्यादा थोड़ा टेंशन में हो तो आप ऐसे पढ़ोगे, okay, do not sub-vocalize, trying to just every day work to just one thing better thing that learning follow. आप क्या कर रहे हो? आप बोल बोल के पढ़ रहे हो. ठीक है, प्रैक्टिस में बोल बोल के पढ़ रहे होते हो. आप क्या बोलते हैं, कभी एग्जाम में आप नर्वस हो के आप बोल बोल के पढ़ रहे हो. बोल बोल के पढ़ने से आपकी एक तो रीडिंग स्लो हो जाती है, दूसरा आपकी रीडिंग इमोशनल ज्यादा हो जाती है, इंटेलेक्चुअल कम हो जाती है. हम बोलना तभी चाहते हैं नॉर्मली जब इट इज रियली नेसेसरी, राइट, नहीं तो हमारा इंटेलेक्ट शांत रहता है. सो ये हमारा सब वोकलाइजेशन जिसको कहते हैं, बोल बोल के पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आसपास के लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, हो सकता है आप तो बोल भी नहीं रहा, मर्मर कर रहे हैं. आई डोंट नो अगर मेरी मर्मरिंग आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, बट या लाइक आई सेड कि सब वोकलाइजेशन हमें अवॉइड करनी चाहिए. दिस इज अ प्रैक्टिस करते हुए स्पेशली, और बाय द टाइम यू आर इन IELTS टेस्ट सेंटर
और इतने सारे लोग होंगे, सब कर रहे होंगे, कुछ लोग क्या भी मम्मा आवाज भी आ रही तो भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप पूरी पूरी तरह फोकस होंगे। दूसरा मैं यहाँ पे जो मेंशन करना भूल गया था, सब वोकलाइजेशन तो हमें स्टॉप करती ही है रीड करने से, हमें सॉरी स्लो करती है रीड करने से। सिमिलरली हम एक मिस्टेक क्या करते हैं कि हम कभी भी ना तो माउस का पॉइंटर यूज करते हैं पढ़ने के लिए, और ना हम कभी अपनी पेंसिल की टिप यूज करते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप अभी भी नोटिस कर लेना, अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझनी है और आप आपने अपने पेंसिल का टिप लेके ऐसे ऐसे पढ़ने लगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। और एक और चीज आप नोटिस करेंगे, जो हमारा हैंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन है, आई कोऑर्डिनेशन है, वो थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बात बहुत अच्छी समझ में नहीं आई कि ट्राइंग न्यू टेस्ट एवरी डे होपिंग टू डू जस्ट नेक्स्ट वन बेटर, तो आप नोटिस करोगे कि इवन तो मैंने यहाँ पे होपिंग टू डू जस्ट के बाद में शायद कंफ्यूज हो गया था, या मुझे बहुत कम समझ में मतलब मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, फिर भी जो मेरा माउस का पॉइंटर है वो आगे चलता ही जाता है, राइट। ये चीज आपको प्रॉम्प्ट करती है कि नहीं, हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, read through the context and not through each and every word. You don't need to waste time reading every word in a passage. उसके लिए आपको पॉइंटर यूज करना या आप एक पेंसिल का जो टिप है जिससे आप कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेक श्योर दैट यूर यू स्टार्ट अभी भी, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आईएल्स का, या तो पेपर पे कर रहे हैं या आई वुड से कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आपको अपने माउस का पॉइंटर यूज करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी आदत है लैपटॉप यूज करने की, विच इज आई थिंक 99% आज लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, और फिर भी आपके पास माउस नहीं है, तो गेट अ माउस, बिकॉज आईएल्स के एग्जाम में आपको माउस मिलेगा, वहां पे आपको ये आपका जो कीपैड है जिससे आप बहुत ज्यादा यूज टू हो गए, वो आपको बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस, बट if I'm, I don't want to use a pointer purpose for my reading। जैसे अभी मैं अपने माउस के सॉरी मैं अपने कीपैड पे आ गया हूँ, और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि मैं इस अपनी फिंगर को ड्रैग करता रहूँ, it becomes sticky and it becomes a little bit uneasy, right? तो इस आलस से भी हम लोग ये वाला फॉलो नहीं करना चाहते हैं टेक्निक, कि आप अपने माउस के पॉइंटर को यूज कीजिए पढ़ने के लिए। सो प्लीज गेट अ माउस ASAP and start practicing for IELTS reading, especially when you're doing a computer-based test. Obviously, अगर आप paper-based test कर रहे हैं तो कोई issue नहीं है. Okay. Now, what's the next one? Trying new tests every day, hoping to do just one better. This is what happened to me, and it kept happening to me quite often actually. मैं यही करता रहता था कि चलो अगला हो जाएगा, मगर हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने क्या मैंने एटलीस्ट ऑब्जर्व करी अपने में भी, और लोगों में भी देख के, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो मैं देखता हूँ कि उनका पैटर्न क्या है कि टेस्ट कर लिया, ठीक है, और उन्हें चेक किया आंसर सही आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है सर ये गलती होगी, सर वो गलती होगी, सर वो समझ में नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब वही सेम टेस्ट मैं जब 2 हफ्ते बाद देता हूँ, कहेंगे सर हमने तो टेस्ट कर रखा है, कर लिया। मैं, ये कोई इशू नहीं, आपने कर रखा है तो अच्छा है, और अच्छे स्कोर आने वाला है, मगर 0.5 से ज्यादा या 1 बैंक से ज्यादा बढ़ता नहीं है। किसी को 6 आ रहा था तो 7 आ जाता है मैक्सिमम, 7 आ रहा था तो 7.5, 8 आ रहा था तो अभी भी 8, 8.5 में अटके हुए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि यार आपने वही टेस्ट वापस दिया और आपका स्कोर नहीं आया, ठीक है। ये लिसनिंग में भी होता है, ये रीडिंग में भी होता है। इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि स्पेशली इन रीडिंग, जो भी आपने टेस्ट लिया है उसको आपको 2 हफ्ते बाद रिपीट करना चाहिए। सो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्राइंग टू डू न्यू टेस्ट एवरी डे होपिंग टू डू जस्ट वन नेक्स्ट वन बेटर इज नॉट द स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी इज पे अटेंशन टू डेप्थ लर्निंग। सो हम लोग वी आर नॉट पेइंग अटेंशन एक्चुअली टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेप्थ लर्निंग इन फॉलोअप्स। जब हम फॉलोअप्स कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने कोई रीडिंग का पैसेज निकाला, ठीक है, इट वाज अबाउट आर्कियोलॉजी, ओके, और आर्कियोलॉजी में काफी अलग अलग डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, नथिंग एट टॉप ऑफ माय माइंड, बट रिलेटेड टू कौन सा एज था, कुछ मेथोलॉजिक एज होगा, कोई अलग अलग पीरियड के नाम होंगे, अलग अलग क्रीचर्स के नाम होंगे, क्रिप्टोसोरस और ये वो एक्सेट्रा। पहले जब मैं आईएएस करता था तो आई नेवर यूज्ड टू बॉदर कि इनके बारे में मुझे क्या सीखना है, मुझे तो बस
प्रैक्टिस करनी है अपनी रीडिंग, राइट? सो यही बड़ी मिस्टेक होती थी कि मैं रीडिंग को हमेशा प्रैक्टिस लेता था एंड नेवर लाइक अ लर्निंग. सो रिमेंबर वन थिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग आर द टू वेज टू learn. They are not something to practice. Okay, हम गलती ये करते हैं कि हम उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ये सोचिए कि अगला टेस्ट अच्छा हो जाएगा. सो when once you do your test, मान लीजिए आपने एक सैंपल टेस्ट लिया, आपने वो खत्म किया, तो आपको उसको उससे कुछ सीखना है. आप वापस देखो, अच्छा ये क्या लिखा है कि क्रिप्टोसॉरसेस वर नॉट फाउंड आफ्टर 5 मिलियन ईयर्स. अब ये सोचने की बात है यार, 5 मिलियन ईयर्स के बाद नहीं थे, तो 5 मिलियन से पहले कितने साल रहे होंगे. तो तब जाके गूगल कीजिए क्रिप्टोसॉरस, उनका आप, आई डोंट थिंक क्रिप्टोसॉरस इज द टर्म एक्चुअली, कोई दूसरा ही था बट स्टिल ओके, उनका आप देखिए कि कितने सारे कितने साल रहे थे और किस किस कैटेगरीज में उनको डाला गया है. तो इससे क्या होगा, आप इन डेप्थ लर्निंग ले पाएंगे. एंड दैट एग्जैक्टली इज द मैजिकल थिंग अबाउट IITS, इट इम्प्रूव योर लर्निंग. और हमने IITS को लर्निंग का मेथड रखा ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिसिंग का रखा हुआ है. बट जो आपने लर्न ही नहीं किया वो आप प्रैक्टिस क्या करोगे. जैसे कि मेरे कुछ जब मैं एक बार बड़ौदा में स्पोकन इंग्लिश लेता था, तो सब लोग कहते थे कि सर इन द मॉर्निंग I have breakfast, in the lunch I have sorry, in the morning I have breakfast, in the lunch I eat roti and etc etc. So मैंने उनको ऐसे बोला कि आप ये भी बोल सकते हो कि I take lunch instead of saying I eat lunch, मैंने बोला I take lunch भी. तो चलो किसी ने कुछ सीखा. अब कुछ सीखने के बाद ही आप प्रैक्टिस करोगे. मगर जब आपको ये नहीं पता कि आप ईट को लंच टेक भी कह सकते हैं, आप ईट को हैव भी कह सकते हैं, राइट? सो आप उसको प्रैक्टिस करना, आप लिमिटेड ही प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिकली. सो जब तक हमने अपनी रीडिंग का पोटेंशियल नहीं बढ़ाई है, जब तक हमने वाइड रेंज ऑफ लर्निंग नहीं स्टार्ट कर दी है, तब तक वो नहीं होने वाला है. और इसमें कहीं ना कहीं मन लगाना पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग स्टूडेंट्स रहे हैं स्कूल के, हम जानते हैं कि आई थिंक अभी भी आई थिंक मीटिंग में मैंने चेक तो किया नहीं, बट प्रोबेबली हाँ 26 पार्टिसिपेंट जो है उसमें से आई एम श्योर 22 पार्टिसिपेंट्स नाइट लर्नर्स रहे होंगे, एग्जाम से पहले ही रात को बैठ के पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग मी, राइट? मगर ऐसा नहीं होता था कि हमने एग्जाम से पहले वो सब्जेक्ट को हमने छुआ है. बट द ग्रेट थिंग अबाउट IITS इज दैट आप कुछ भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हैं वही पढ़ना है आपको कि जो आपको बताया गया है. ठीक है, थोड़ा वैरायटी तो रहेगी, मगर आप कुछ भी पढ़ो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होती है. ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट yeah, so there's a question, how can we increase our level? Let us talk more about it. अभी तो मैं आपको don'ts बता रहा हूँ, मैं आपको do's में भी अभी लेके जाने वाला हूँ. Okay. So attempting all questions with one technique or style, yes, 2-3 styles हैं, in fact 2 main styles हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा अभी. Avoiding difficult passage or exercise in practice sessions, हाँ ये तो होता ही है कि चलो ठीक है ये वाला बाद में कर देंगे, फिर हम सो जाते हैं, लंच खाने चले जाते हैं, फिर वो हम भूल जाते हैं कि हमने किया. हम we are always excited for the next test अच्छा करेंगे. Yeah. Okay, we have a question back. I'm stuck at 5.5. Cool. Let me just start answering the questions now. Wasting time reading every word in a passage, ये हमने डिस्कस किया. Okay. So what to do? अभी क्वेश्चन आ गया कि what to do. What are the strategies जो हमारा लेवल बढ़ाएंगे, right? Okay. So obviously you guys are able to see the see what's on the presentation, but let's start discussing more. Read extensively. Sorry. Why it's going back? Yeah. So read extensively various types of articles and passages to learn more vocabulary and get used to jargons. What are jargons? कुछ words जो हैं हमको बेसिकली समझ में आते नहीं है और हम उनको इग्नोर करने स्टार्ट कर देते हैं, राइट? तो वो jargons होते हैं. So how to increase your level? मैं आपको बहुत सिंपल सा चीज बताता हूँ. 7th स्टैंडर्ड तक सबने इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, 6th 7th 8th 9th एक्सेट्रा. और अचानक से आपको क्या बोलते हैं, जब 11th में आए होंगे, अगर आप ICSE स्टूडेंट है तो आपने शेक्सपियर देखी होगी. अगर आप ICSE स्टूडेंट नहीं है तो भी आपने क्या बोलते हैं CBSE में या तो शेक्सपियर या और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑथर्स आपने
पढ़े होंगे, वो जो कॉम्प्लेक्स ऑथर्स आप पढ़ने लगे अपने इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में जो आप समझने लगे, आप याद करो कि जो मैंने 11th में चैप्टर्स पढ़े हैं जिनकी जो इन डेप्थ नॉलेज आपने ली है, आपने सोशियो साइंस से उनकी इन डेप्थ नॉलेज ली है, साइकोलॉजिकल वे में आपने उनकी इन डेप्थ नॉलेज ली है, आपके इतने सारे अलग अलग तरीके से उनकी जो आपने नॉलेज करी है, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज या वट एवर द वर्ल्ड अराउंड आपने जो लिया है, अब अचानक से अगर वही चीज जो 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन है, 11th स्टैंडर्ड का जो बच्चा समझ सकता है इंग्लिश, वो अगर आप 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाया जाए तो क्या हालत होगी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को। ही बी लाइक समझ में आ रहा है, वर्ड्स हैं, समझ में आ रहा है, ये है वो है, मगर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ही कैन रीड इट मगर उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, आईसीएसई में भी पढ़ा हो, तो भी उसकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होती है। आई नो माई ओन माई नेफ्यू who's 11 or 12 years old, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है इस वक्त, और वो मेरे कभी कभी वो मुझे अलग अलग वोकैबुलरी के सजेशन दे पाता है। बट आई नो अगर मैं उसको शेक्सपियर पढ़ा दिया, मैं न्यू टॉल्स्टॉय पढ़ा दिया, या अगर मैं दा विंची कोड की जो बुक्स हैं जैसे जो अच्छे पॉपुलर नॉवेल्स हैं, वो मैंने उसको दी, तो वो ही विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट, राइट। सो हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जो टेक्स्ट हमारे सामने है वी आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया के बारे में बात चल रही है, किसी और ही अलग क्या बोलते हैं कोई टॉपिक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लर्निंग हमें द ओनली वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग इज लर्निंग, नॉट प्रैक्टिसिंग, लर्निंग। तो क्या लर्न करना है एंड कैसे हमें लर्न करना है ये जानते हैं। ठीक है, सो जैसे आपने यहाँ पे देखा है, read various types of articles and passages to learn more vocabulary and get used to jargons. Okay, or must read at least 2 novels of different genre before writing IELTS, right? 2 genre मतलब पहला जैसे आपने रोमांटिक पढ़ा, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा नॉवेल स्टार्ट करो और आप बोलोगे चलो ठीक है, सर ने बोला है दा विंची कोड भी उठा लेंगे, ठीक है, डैन ब्राउन को उठा लेंगे, जेफरी आर्चर को उठा लेंगे, सिडनी शेल्डन उठा लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे पॉपुलर ऑथर्स हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कुछ इंटरेस्टिंग और सिंपल नॉवल उठाइए। आप रोमांटिक नॉवेल्स ले सकते हैं, आप हैरी पॉटर ले सकते हैं, राइट, दीस थिंग्स आर आल्सो रियली नाइस। बट कॉशन, डोंट रीड cheesy Indian authors like Chetan Bhagat or Arundhati, not Arundhati Roy is pretty good, Arjun Kapoor Roy, ऐसे कुछ करके हैं, probably in the same context. Why I am saying is because उनके रीडिंग में, उनके नॉवल रीडिंग में कोई आपको ग्रामेटिकल स्टाइल नहीं दिखेगा, आपको काफी फ्री फ्लो ऑफ कलोकियल स्पीकिंग लैंग्वेज ज्यादा दिखेगी उसमें इंस्टेड ऑफ रीडिंग लैंग्वेज। सो चूज अ गुड ऑथर। अगर जैसे जेके रोलिंग हो गई, हैरी पॉटर सपोज टू बी फॉर किड्स, राइट, मगर आज भी काफी लोगों को डिफिकल्ट लगता है हैरी पॉटर पढ़ने में, कहते हैं समझ नहीं आता, बट आप सिंपल से स्टार्ट करो। हैविंग रेड दैट, तो आपको जॉनर पलटना है। अब आप आ जाओ साइंस फिक्शन में, साइंस फिक्शन इज अ मस्ट, ठीक है, या साइंस फिक्शन इज काइंड ऑफ अ मस्ट। ओके, और एक और मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा जिसमें आप नॉवल को सुन भी सकते हैं और साथ साथ आप रीड भी कर सकते हैं। दिस इज अ रियली फैंटास्टिक आई वुड से टेक्निक। मे बी आई कैन टेल यू दैट अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, try to love and appreciate what is being read and smile read. So एक मैं आप क्या करता हूँ, एक बस स्क्रीन शेयर करके आपको एक YouTube में स्मॉल एक्टिविटी दिखाता हूँ जो आप कर सकते हैं, which will eventually help you in your reading. या और ये चीज वैसे भी हमें लिसनिंग के लिए करनी ही है। So it is going to be लाइक कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने, है ना, तो आपको एक तीर से दो निशाने मारने हैं, कैसे करोगे आप। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, या यू कैन सी आवर फेवरेट यूट्यूब एंड इट्स रिकमेंडेशंस। मैंने यहाँ पे पहले भी इसको प्ले किया था। देयर इज दिस ऑडियो बुक कॉल्ड एज द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, शिवा ट्रायोलॉजी। आई एम श्योर एटलीस्ट आधे लोगों में से आपने तो इसका नाम सुना ही होगा, ठीक है। काफी बार बात हुई है कि इसकी मूवी कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये ऑडियो बुक चल रही है। इसकी आपको पीडीएफ कॉपी अगर आप थोड़ा अच्छे से गूगल करोगे ना, तो आपको इसकी पीडीएफ कॉपी भी मिल जाएगी, मुझे भी मिल गई थी। नहीं तो
मैं ट्राई करूंगा कि सर्कुलेट कर सकूं किसी तरीके से। तो आई हैव द पीडीएफ कॉपी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप पीडीएफ को आपने प्रिंट आउट ले लिया, ठीक है, एंड देन आप इसी नॉवल को सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये बेसिक टेक्निक हो गई, ठीक है। जैसे कि हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैडम क्या करती थी, पढ़ पढ़ के सुनाती थी, और अचानक से जब पढ़ पढ़ के सुनाने लगी तो हमें यार हमें तो समझ में आ रहा है, ये पता नहीं कैसे मैजिक हो गया, मगर आने लगता था समझ में। तो ये बेसिक टेक्निक है। ओके, अब इसके बाद आपको लगता है नहीं मैं तो बोरिंग, ये तो बोरिंग हो गया, शशांक सभी क्या बोलते हैं, ये तो कौन बच्चे की तरह पढ़ेगा, तब आप इसको थोड़ा अपना चैलेंज बना सकते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर को सिर्फ सुना, और सुना भी कैसे, आप सेटिंग्स में जाइए और प्लेबैक स्पीड को 1.5 स्पीड पे ले आइए। सो जब आप 1.5 स्पीड पे कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है, ये अगेन एक तीर से दो निशान है, लिसनिंग आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जब आपने 1.5 स्पीड पे चैप्टर को फॉलो किया सोचने का, तो आप यू हैव टू लिसन एंड थिंक एंड प्रोसेस इजीली, ठीक है। वो होगा आपका। और उसके बाद आप सेकेंड चैप्टर आप रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, नॉर्मल अपने पीडीएफ से या अपने पेपर जो आपने प्रिंट आउट लिया है। So one chapter you read, one chapter you listen, one chapter you read, one chapter you listen. Good readers are good writers, good listeners are good speakers. आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड ऐसे नहीं वैसे सुना था मैंने। तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा, आपकी राइटिंग में बेनिफिट होगा, आपकी रीडिंग में बेनिफिट होगा, आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग, सब में आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। अगर आपने दो नॉवेल्स सुनी भी आधी, मतलब सुनते सुनते पढ़ी है, जस्ट एक्सेट्रा, इट्स लाइक यू नो वॉचिंग द सबटाइटल्स। मगर अगेन आई सेड एडवांस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है आंखें बंद करके, या आपको सिर्फ रीड करना है। तो पहले तो आप स्टार्ट कर सकते हो सुनना और रीड एक साथ, पर उसके बाद आपको सेपरेट सेपरेट एक्टिविटीज करनी है। इट्स अ रियली गुड एक्टिविटी, स्पेशली 1.5 स्पीड जो मैंने आपको बताई, इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस। ओके, सो और भी हम बात कर रहे हैं अभी कि हाउ टू इम्प्रूव द लेवल, राइट। तो लेवल इंप्रूव करने के लिए मैंने बताया कि आपको लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग। और आपको ये जो हम ऑडियो बुक्स हैं फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम चल सकते हैं, लाइक अ बेसिक टेक्निक वी कैन अप्लाई। ओके, ट्राई टू, अच्छा, एक ना बहुत सुंदर मैंने किसी शायद गुरु जी होंगे, श्री श्री रविशंकर और सदगुरु, आई डोंट नो, सो उनसे सुना था कि ज्ञान की उपज प्रेम में होती है, ठीक है। ज्ञान की उपज मतलब जो आपकी नॉलेज ऑफ फ्लावर कैसे होती है, प्यार से ही फ्लावर होती है। काफी लोग है ना फोर्सफुली उनको बैठा देते हैं क्लास में, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, मगर आप वही चीज आप क्या बोलते हैं उनसे 2 महीने भी नहीं, 4 दिन के बाद भी पूछो तो उनको याद नहीं होगा, यार एग्जाम के लिए पढ़ा था, अब एग्जाम गया मैं भी भूल गया, ठीक है। मगर आप सोचो एक चीज आपने ऐसी पढ़ी, ठीक है, अब तो कितना अच्छा हो गया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गए, राइट। आपने बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ी और आपने उसको लाइक किया बेसिकली, फिर उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप रेडी हैं आंसर देने के, अरे यार मुझे देना है इसका आंसर, आई नो मोर अबाउट इट एंड आल्सो वांट टू नो मोर अबाउट इट। तो अगर आप किसी चीज को लव कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो वो आपका जो ज्ञान है वो फ्लावर करने लगेगा, आपकी जो लेवल है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। आप ये मान के चलो कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं, आप कोई म्यूजिक सीख रहे हैं, ठीक है, आप पियानो सीख रहे हैं, तो पहले तो आपको लगेगा ये क्या है, सी कॉर्ड, डी कॉर्ड, एफ कॉर्ड, यहाँ पे क्या इतना सारा टेक्निकलिटी होती है, आपको लगेगा बस डॉ 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 करो चले जाओ, थोड़ा बहुत बस आ जाए, लर्न कर रहे हैं। बट एक टाइम क्या होता है, जब आप 1 महीना आप ये सब कर रहे हैं, तो आपको एक फील आता है नहीं यार कुछ तो और है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन मेक सम म्यूजिक आउट ऑफ इट। तो जब आप उस माइंडसेट में आ जाते हो, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड पेइंग अटेंशन टू एवरी ट्यून, right, when you start learning and practicing at the same time, right, तब जाके वो with that love, with that smile on your face and a song in your heart, आपको आपका लेवल ऑफ पियानो बढ़ जाता है। तो अगेन लेवल ऑफ पियानो हो, गिटार हो, कुछ भी हो, 2 महीने तो लगते हैं भैया लेवल बढ़ाने में, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि IELTS needs time, IELTS needs patience and learning with love. Without love it will not happen, ठीक है। अगर आपको लव नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप बायो स्टूडेंट है और पैसेज हो गया इकोनॉमी के ऊपर पैसेज है, ठीक है, और आप पैसेज देख रहे हो, ठीक है, तो
नहीं होने वाला है। सो आप क्या करोगे, जस्ट फेक अ स्माइल। इफ यू कैन फेक इट यू कैन मेक इट, ठीक है। लव भी प्रैक्टिस की चीज है, राइट। सो स्माइल and start reading. If you just smile and start reading, you will notice that it will work out. और मैं आपको सच बताऊं, काफी रिस्की स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, रीडिंग में 5.5 आ रहा है, 6 आ रहा है, उनको 6.5 चाहिए रीडिंग के टेस्ट में, ठीक है, आईएल्स में। और दे आर लाइक यार कैसे होगा, मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है कोई नहीं, जस्ट रिमेंबर टू स्माइल, रिमेंबर टू स्माइल, मैं ये उनको बताया था, ठीक है। और वो गए हैं एग्जाम, उन्होंने बस स्माइल करके पढ़ा है और किसी तरह दे हैव एक्चुअली गॉट द रिक्वायर्ड बैंक स्कोर। एट द सेम टाइम आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स जो अच्छा करते हैं और बीमार हो गए, मूड खराब हो गया, घर से लड़ाई झगड़ा करके गए टेस्ट में, ठीक है, और क्या हुआ, रिजल्ट आया कम। सो स्माइलिंग विल विन द बैटल बोथ इन लिसनिंग एंड रीडिंग। ओके, so I'm just checking the chat box now for any questions. Okay, not okay. So during the test, ये तो चलिए हो गया, हम टेस्ट के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए dogonews.com मैंने मेंशन किया है, ये बहुत ही अच्छी वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। इसमें ना ब्यूटी ये भी है कि आप कुछ भी क्लिक करोगे तो कुछ भी जो भी वर्ड हाईलाइटेड है उसको क्लिक करोगे तो उसका मीनिंग पॉपअप हो जाता है। एंड माय सजेशन इज कि डोगो न्यूज के जो आर्टिकल्स हैं वो आप दो बार पढ़ें, या दो अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ें आप, ठीक है। तो we get stuck at 5.5 bands in reading, exactly like I said, अगर आप स्टक हो रहे हैं या तो आप उसको स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया 1 महीना 2 महीना, ठीक है, आपने बहुत सारे व्रत रख लिए, या आपने अपने आप को नर्चर नहीं किया, आपने एंजॉय नहीं करी रीडिंग, आप खुद सोचो कि यार मैंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैंने प्रैक्टिस करी IITS की, मैंने क्या सीखा, कितनी लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, अगर अब इस लेवल का टॉपिक आ गया तो मैं एटलीस्ट वो कर सकता हूँ, अगर बायोलॉजी के मेरे को थोड़ा समझ में आ गए, या मेरे को साइंस के और ज्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या मैंने ये सीख लिया, इकोनॉमिक्स के आते हैं, सिविक्स के तो नहीं आ रहे, हाँ इकोनॉमिक्स से अगर मैंने करके मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है इकोनॉमिक्स के बारे में, क्या मेरी वर्ल्ड नॉलेज बढ़ गई है, आईएएस के टॉपिक तो सारे इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, क्या ये सब आपका हुआ है। अगर आप अपने आप को ये आंसर नहीं दे पा रहे हो क्या मैंने कुछ नहीं सीखा, अगर मैंने कुछ सीखा और आपको लग रहा है क्या सीखा 2-3 हफ्ते में, सिर्फ ये सीखा कि 5.5 बैंड आते हैं, या ये सीखा कि 6.5 में बैंड बैठते हैं, तो दैट इज नॉट द थिंग। सीखा क्या, ये सवाल है। जैसे कि आज भी अगर मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ कोई नॉर्मल आर्टिकल, तो मैं देख रहा होता हूँ जैसे चाइना ने कुछ सोडियम आयन बैटरीज निकाल के ले आए, एंड आई एम राइट नाउ क्यूरियस टू नो कि ये क्या है और कैसे कर पाएंगे, हाउ आर दे गोइंग टू बी चीपर देन लिथियम आयन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ वर्ल्ड गेम चेंजर। जब तक मैं कुछ सीखूंगा नहीं मैं कैसे शेयर करूंगा। इनफैक्ट अनदर ग्रेट पॉइंट व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स टू डू, कि जब वो क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि हम सेटल हो रहे हैं क्लास में एक्सेट्रा, तो आप ये बताओ अगले स्टूडेंट को, जब तक मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कि तुमने डोगो न्यूज में क्या पढ़ा, कल का आर्टिकल तुम्हें क्यों इंटरेस्टिंग लगा, और तुम्हें क्या, अपना भी तो ओपिनियन होता है ना उसके ऊपर, हमारा क्लाइमेट चेंज हो उस पर ओपिनियन होगा, हमारा एनिमल क्रूएल्टी हो गई या कुछ भी हो गया, सब में तो ओपिनियन होता ही है, और ये आर्टिकल्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो इंफॉर्मेशन, जो भी आपने नॉलेज ली है उसको आप शेयर कीजिए, बिकॉज शेयर करने से आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होता है। एंड रिमेंबर टू मेक नोट्स, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये हो ही जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आपने बहुत टेंशन में भी किया तो ठीक है, आपका जो चीज आप 1-1.5 महीने में कर सकते थे वो आपने 2.5 महीने में किया, मगर करेंगे आप जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू गेट स्टक एट 5.5 बैंड, ओके। और ये बात भी हटा देना, रिमेंबर वन थिंग, अपने आप को हमें अच्छा अफर्मेशन देना है कि आई एम गेटिंग बेटर, आई एम लर्निंग मोर, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम लर्निंग मोर, ये आपके मन में होना चाहिए। गुजराती में बोलना है गुजराती में बोलो, या हिंदी में बोलना है तो दैट्स इट। How many reading tests should we practice in a week? Okay, some of the passages are very tough to understand as they are on biotechnology and ancient culture. Yes, you're right. Biotechnology, ancient culture, civics, history के काफी टॉपिक्स होते हैं, इनको आप डोगो न्यूज में बहुत सिंपल इंग्लिश में देख सकते हैं। और मैंने ये बताया आपको कि एक पैसेज आता है आपको, उसको आपको रिवाइज कैसे करना है, आपको उससे सीखना है, ठीक है।
अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं आपने कोई कोई नया एनिमल का नाम सुना, ऑटर्स, ठीक है, पूरा पैसेज ऑटर्स के बारे में था, और आपने सोचा ठीक है चलो ऑटर्स ऐसे फरी एनिमल्स होते हैं, पानी में भी जाते हैं, इधर पे भी जाते हैं, ये सब आपने पढ़ा, आप सेटिस्फाइड हो गए, और आप अपने आपने आंसर देके क्लोज किया, सो गए। अगले दिन मैंने आपसे पूछा कि आपने कौन सा टॉपिक किया था, ठीक है, तो आपने बोला ऑटर्स के बारे में पढ़ा था सर, ठीक है, और ये मेरे साथ हुआ है, हाँ, टू बी फ्रैंक, मैं बोला अच्छा ऑटर्स कैसे कैसे होते हैं दिखते हैं, तो उसने बोला कि सर होते हैं, पानी में होते हैं, ठीक है, मैं बोला अच्छा, और कहाँ होते हैं सर, बस पानी में होते हैं ऑटर्स। भाई इस बंदे ने मतलब पूरा पढ़ा आर्टिकल ऑटर्स के बारे में, मगर बिल्कुल भी मुझे उसको ये नहीं पता कि ऑटर दिखता भी कैसे है। डू यू सी माय पॉइंट? सो ऐसे ही हम लोग मिस आउट कर देते हैं ऑन लर्निंग। अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो हमारा इन डेप्थ जो नॉलेज है, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स या परसेप्शन, वो हम बढ़ा नहीं पाते, और यहाँ जो नहीं बढ़ा पाते इसलिए हमारा वो स्टक, हम लर्निंग में स्टक हो गए, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बेसिकली दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब नाउ आई एम कमिंग टू द ड्यूरिंग द टेस्ट वाला। ओके, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ, ये आपको हैबिट अभी से डालनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन नहीं भी है आइडेंटिफाई करने का तो भी आपको करना है। अगर आप डोगो न्यूज के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो भी आप आपने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा, हाँ ओके, इसका मुझे, आपने अपने मन में रिवाइज कर दिया यार, इसका ये आइडिया है, जस्ट रिवाइजिंग इन योर माइंड कि ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है इसका ये आइडिया है, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि बस आपने पढ़ा है मगर समझा नहीं है, तो यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ कि आपने समझा भी कि नहीं, बिकॉज डीपर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कॉग्निटिव स्किल्स, एंड बेटर कॉग्निटिव स्किल्स यू कैन जस्ट नेल योर IELTS एग्जाम। रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली। मैं आपको एक सैंपल टेस्ट दिखाता हूँ, उसमें हम ये सब देख लेंगे। आइडेंटिफाई व्हेन टू स्किम एंड स्कैन द स्कैन एंड व्हेन टू क्विकली रीड ट्वाइस। क्या होता है, स्किमिंग और स्कैनिंग तो हमें करनी ही है टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, और ये नॉर्मल सबका टेक्निक होता है, मगर कभी कभी ना कुछ पैसेजेस को आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ के आपको, फिर जब आप फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हो या आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जाते हो, तब आप बेटर आंसर दे पाते हो दैन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। क्योंकि एक तो ये है कि माइंड ना मोनोटनी नहीं चाहता है, ठीक है, माइंड को अगर आप देखोगे, और आपने आपको करने हैं समझे 9 टेस्ट प्रैक्टिस बिफोर IELTS। मैं 9 टेस्ट की बात करता हूँ नॉर्मली, मतलब जो 1 आवर के है। व्हाई? बिकॉज एक हफ्ते में आपको 3 टेस्ट करने हैं, ठीक है, 3 रीडिंग टेस्ट और 3 लिसनिंग टेस्ट आपको बस करना है, और बाकी टीचर से आप अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट में जाओगे या बाकी कितनी जगह जाओगे तो वो आपको बोलेंगे एक 25 या 40 टेस्ट की बुकलेट दे देंगे और सारे से करना है आपको, ठीक है। ये आई थिंक इज अ बिग मिस्टेक, अभी भी काफी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स भी इस माइंड में होते हैं कि हमें करने होते हैं, इसलिए आई थिंक हम लोग भी 40 टेस्ट की बुकलेट देते हैं, मगर मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आपको 40 के 40 सेट सॉल्व करना है। सो 9 टेस्ट, अगर देखिए आप वीक स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा नए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में देखे, तो ऑब्वियसली आपको 9 into 2 करना पड़ेगा 18, विच इज 2 months प्रैक्टिस, या 2 months प्रैक्टिस। मगर 3 वीक्स में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं IELTS, तो आपको सीरियसली सिर्फ 3 टेस्ट देने हैं एक हफ्ते में, और छोटे छोटे कुछ मिनी टेस्ट आप करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, गूगल पे दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। So be ready, reading passages get tougher as the section proceeds. Yeah. Try to complete the sections 1 and 2 in 34 and 35 minutes. ये प्रैक्टिस आपको थोड़ी, अगर टाइम की करनी तो ये कीजिए, क्योंकि सेक्शन 3 में ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और सेक्शन 3 हमेशा लास्ट में अटेंड करो। मैंने क्या देखा, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने देखा कि मैं सेक्शन 3 हमेशा पहले अटेंड करना चाहता, बिकॉज वो डिफिकल्ट होता है, और मेरा माइंड कहता है यार डिफिकल्ट चीज पहले कर दो, है ना, और कहीं ना कहीं आप रिलैक्स भी हो जाते हो। सो मगर अगर हम एकेडमिक की स्पेशली बात करें, then you can miss the bus big time, because एकेडमिक का जो रीडिंग पैसेज होता है सेक्शन 3, वो काफी लंबा होता है, और वो आपको काफी क्या कहते हैं, आपको 23 के जगह 25 मिनट्स भी उलझा सकता है, और जब तक आप सेक्शन 1 और 2 पे आते हो आपको लगता है ओ माय गॉड इतने दोनों सेक्शन करना है, सिर्फ मेरे पास 35 मिनट्स बचा हुआ है, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तो हम फियर बढ़ा लेते हैं। बेटर ये है आप सेक्शन 1 कर लो शांति से, और आपने 17 to 20 मिनट्स में हो जाता है। 17 is a very good time to finish section 1, whether you're in general training or in academic. Similarly, section 2 को आप क्या होता है 17 से 18 मिनट तक खींच सकते हैं, एंड देन सेक्शन 3 को आप शांति से
पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द टेस्ट लेट अस सी हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय गूगल स्क्रीन एंड टेल यू व्हाट आर द क्विक थिंग्स दैट यू कैन डू। होल्ड ऑन प्लीज। आई होप यू गाइज आर मेकिंग नोट्स। जो भी छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज उसका नोट्स बनाइए। ये जो टिप्स हैं ये आप डेफिनेटली एक रोज या कभी कभी आप देख सकते हैं, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वालों को ये ही स्क्रीन दिखती है। ओनली डिफरेंस इज ये थोड़ा ऑरेंजिश होती है पीछे या येलोइश होती है। ठीक है, आपका यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नंबर डिस्प्लेड होगा और आप तो यहाँ पे बोलोगे माय डिटेल्स आर करेक्ट एंड ऑब्वियसली दे विल बी गिविंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि क्या टाइम है आपके पास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देन यू विल गो एंड हिट द स्टार्ट टेस्ट बटन। अभी अगर हम ये पैराग्राफ देखें या नॉर्मल देखें तो यहाँ पे जैसे 1 to 34 की सेगमेंट है, ये प्रैक्टिस मॉड्यूल है, इसीलिए एग्जैक्टली ये आई वुड से आईएल्स के फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे 1 to 4 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। नॉर्मली एक पेज में आपको 1 to 7 क्वेश्चन तो मिनिमम दिखेंगे, स्पेशली सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में। फिर सेक्शन दैट मींस सेक्शन 1 इज डिवाइडेड इनटू हाफ पेज, सेक्शन 2 इज आल्सो डिवाइडेड इन हाफ। मगर एकेडमिक में 90% चांसेस है कि कोई डिवीजन नहीं होगा। पूरा सेक्शन 1 इसी शीट में होगा आपके और सेक्शन 2 भी इसी शीट में होगा। ऑब्वियसली सेक्शन 3 आल्सो हैपेंस इन दैट मैनर। हैविंग सेड दैट, लोग मुझे पूछते हैं कि सर, मुझे कहते हैं कि सर ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो बहुत डिफिकल्ट होता है सर, समझ में नहीं आता है, घुस घुस के ऐसे देखना पड़ता है, छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, और पेपर पेंसिल में हम हाईलाइट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट काफी लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे भी अच्छा खासा हाईलाइटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से मैंने राइट क्लिक कर हाईलाइट किया एंड आई कैन आल्सो मेक नोट्स इफ नेसेसरी। आई कैन लिटरली टाइप इट आउट या एंड मेक नोट्स इफ नेसेसरी। ओके, दैट बीइंग सेड, so during the test, what was I saying before? Let me just check. Identify the main idea of each paragraph. ये तो हमने देख लिया. Read the instructions and catch questions carefully. Yes. देखिए यहाँ पे जैसे एक लाइन लिखी है, you may choose any political unit more than once. अगर ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है या बोले you may choose any letter more than once, ऐसे कभी कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कभी भी रिपीटिशन के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। यहाँ पे बताया है कि यू मे चूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो 100% इवन दो दे हैव यूज्ड द वर्ड मे, स्टिल रिपीट होगा ही होगा। और यहाँ पे तो काफी ऑब्वियस है, जो पॉलिटिकल यूनिट्स है वो 3 ही हैं, राइट। और आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्रीटी ऑब्वियस है। मगर अगर मैं इसकी बात करूँ, इस टेस्ट में यू मे चूज एनी लेटर मोर देन वंस, इस एक्सरसाइज की बात करूं तो यहाँ पे ABCDEF करके एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं और उसमें, और यहाँ पर भी ABCDEF ऑप्शन है, मगर फिर भी क्योंकि उन्होंने यू में चूज एनी लेटर मोर देन वंस बोला है, इसलिए ए रिपीट हो सकता है कहीं पर या CC रिपीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये लाइन नहीं होती तो इसके सारे आंसर्स एक्सक्लूसिव ही होते, 110% एक्सक्लूसिव होते इसके आंसर, कोई भी रिपीट नहीं हो सकता। So I am just checking the participants list and मुझे थोड़ा सा ट्रबल आ रहा था कहीं से, probably someone's mic is not muted. इस at this moment मैं हल्का सा पॉज करना चाहूंगा कि has anyone got any questions for me? आप चैट कर सकते हैं, अभी मैंने वैसे माइक अलाउ किया नहीं है, बट जस्ट इन केस you want to ask something. So we are discussing, read the questions carefully. Yeah. Okay. I'm continuing again. So 2 तरीके हैं कोई चीज करने के आईएल्स में।
और मैं आपको रिपीट करूंगा, मोनोटनी में नहीं रहना है हमको। मोनोटनी मतलब स्किम की ये देखा, क्या बोलते हैं, टिचट और डाटा कहाँ पे आप आ रहा है, ठीक है, हमने वो तो देखना ही, मान लीजिए टिचट मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, मुझे मिल गया। फिर और कहाँ पे आ रहा है टिचट, टिचट और डाटा लिखा है यहाँ पे। सो मैंने देखा 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 देखा, कहीं ना कहीं मुझे और मिल ही जाएगा, क्योंकि हमें रीड नहीं करना है, हमें बस स्कीमा स्कैन करना है। तो फिलहाल तो या ओलाटा सोसाइटी, ओके, टिचट ओलाटा लिख दिया, ओके। तो हमने स्किम किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे स्किम किया, मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे स्किम किया, मुझे ना मुझे जीन जीनो दिख रहा है, ना मुझे इक्को दिख रहा है। तो मैंने इन सबको छोड़ के फिर मैं आगे बढ़ा और फिर देखा, हाँ यहाँ जीन जीनो नॉर्मल रिपीट होने लगा, जीन जीनो रिपीट होने लगा, ओके। तो ये सब चीजें हम ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार स्किमिंग स्कैनिंग की बात करते हैं, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर मेथड। एक ग्रुप हमने मार्क कर लिया। अब स्किमिंग और स्कैनिंग वाला बंदा क्या करेगा, जैसे उसने यहाँ पे मार्क किए, जहाँ पे 3 पॉलिटिकल यूनिट्स की बात करें, टिचट ओलाटा, जीन जिनो, एक ग्रुप को, देखिए स्किमिंग स्कैनिंग करनी है, ऐसा मत सोचो कि मैं स्किमिंग स्कैनिंग वाला हूँ, नॉट दैट बंदा, बट या स्किमिंग स्कैनिंग करनी है। सिर्फ स्किमिंग स्कैनिंग नहीं करनी है, वो मैं बताना चाह रहा था, बट एक बार हम स्किमिंग स्कैनिंग का भी बेनिफिट देख लेते हैं। तो मैंने इस पैसेज को स्कीमा स्कैन किया और कीवर्ड्स मुझे मिल गए। अब मैंने देखा कि ये क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बताओ कि देयर इज एविडेंस दैट मेटल वर्कर्स आर हाईली स्किल्ड। ये किसने बात करी, ये टिचट ओलाटा में बात करी थी कि सोसाइटी में, या जिंजिनो की सोसाइटी में थी, या इग्बोटो की सोसाइटी में थी। फिर मैं देख लेता हूँ, चलो, नो इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैज टेकन प्लेस, हैबिटेशन कंटिन्यूड आफ्टर डिक्लाइन ऑफ वर्टिकल यूनिट, डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस। अब आइडियली जो भी कोई जेन्युइन रीडर है या नॉर्मल रीडर है, वो क्या करेगा, चलो ठीक है भाई, हमने देख लिया, हम पता लगे टिचट ओलाटा यहाँ पे स्केड्यूल्ड है, लाइक के बारे में यहाँ पर है, जिन जिनों के बारे में यहाँ पर, एक थोड़ा शायद लास्ट में कहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, मगर अब क्लेवर स्कीमा स्कैनर वाला क्या करेगा, स्कीमा स्कैनिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इग्बू इक्बू ही चलो पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना कितना कम है। आप देखो यहाँ पे इग्बू इक्बू के बारे में बात करी है, कहीं पे और भी कहीं इग्बू की बात ही नहीं करी है। So within 5 lines, I have a possibility of finding an answer today, right now. और अगर मुझे एक आंसर ऑलरेडी यहाँ मिल जाता है सिर्फ 5 लाइन पढ़ने में, तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है। So I'm going to start reading and see. Here an elaborate burial and a storehouse of regalia have been excavated, both holding superb brass castings and thousands of glass beads. The the presence of such wealth hints at well-organized system of trade, remarkably accomplished craft specialists, and a wealthy elite. But we know little of settlements in the region until the emergence of the state of IFE around 100. Okay. बेस अब मुझे, मैंने क्या समझा, मैंने ये समझा कि कहीं ना कहीं इलेबरेट बरियल है यहाँ पे, स्टोर हाउस ऑफ रिगालिया, and both holding super brass castings and thousands of glass beads, etc. Okay, and it is indicating a well-organized system of trade. आपने नोटिस किया, मैंने दूसरी बार भी पढ़ा है, दिस इज द सेकंड टेक्निक। किसी चीज को 2 बार पढ़ के भी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। बट जब मैंने स्कीमो स्कैन किया इसको यहाँ पे, तो अब देख लेते हैं कि कुछ मार्क हो रहा है कि नहीं, 4 में से। क्या उन्होंने बात किया जैसे कि डिफरेंट रेसिडेंशियल एरियाज है, डिफरेंट कैटेगरीज, ऐसी कोई बात नहीं करी। हैबिटेशन कंटिन्यूड आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल यूनिट, उन्होंने बोला है कि सेटलमेंट्स के बारे में कम जानते हैं, मगर ऐसा कोई कुछ बात नहीं करी एक ग्रुप में कि हैबिटेशन कंटिन्यूड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई बात नहीं करी, उन्होंने बोला है कि वी नो लिटिल ऑफ द सेटलमेंट्स इन द रीजन अंटिल द इमर्जेंस ऑफ दिस, मगर इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करी उन्होंने। देयर इज एविडेंस दैट मेटल वर्कर्स वर हाईली स्किल्ड। अब मुझे लग रहा है यार यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा है, फिर भी वापस पढ़ते हैं एक बार। There is evidence that metal workers were highly skilled. So metal workers मतलब brass casting, super brass casting, and remarkably accomplished craft specialists. तो थोड़ा अलग, तो डायरेक्टली नहीं मेंशन किया है, but in 2 points they have clearly mentioned that इग्बू का जो रीजन है वो इस पे बात कर रहा है। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आपने हाईलाइट किया इसको, ठीक है, और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपने नोट्स बना लिया कि पॉसिबल सी आंसर, आप अभी तक इस पे आए नहीं, पॉसिबल सी आंसर। ओके, आई एम नॉट एबल टू टाइप नाउ, बट या
Okay, now let us start doing a good reading. So when we start reading, आपको यहाँ पे पता लगेगा that a four-tier settlement hierarchy has been discovered. That is towns and other settlements at four levels of importance based on size, function, and type of building. और अभी हमने पढ़ा था that different residential areas had different characteristics. So definitely A यहीं पर हो गया, ठीक है। हमें ये भी पता है कि एक चीज रिपीट होगी, हमें ये भी पता है कि सबसे बड़ा पैराग्राफ टिचट और आटा का ही आता है। देखिए ये चीज आईएएस में बहुत कॉमन है। अगर कोई चीज के बारे में ज्यादा बात करी है तो और कोई चीज रिपीट होने वाली है तो 100% वही रिपीट होगी। टिचिडोराडा का पैराग्राफ 8750 तक ऑलमोस्ट हाफ तक जाता है। 99% चांसेस है कि इसका आंसर यहीं पे है। और जब आप पढ़ोगे आगे तो यहाँ उन्होंने मेंशन किया है about tumuli which are certain structures. So they is saying that no anyway तो आपको तुरंत रीडिंग में मिल जाएगा that no investigation of certain structures has taken place is also a answer. Over here they say has yet been excavated. Unfortunately, none of the regions many tumuli have yet been excavated, and over here tumuli has also been defined. इसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद जब मैं पूरा करूंगा तो मुझे गूगल करके भी देखना चाहिए कि क्यूमुला एक्चुअली दिखता कैसा है, तब जाके मेरी पक्की लर्निंग होगी। बिकॉज आई सेड लर्निंग इज द मोर की। अभी चलिए हमने आंसर फाइंड कर लिए दो के। अब दूसरा है कि एक ही मेरा ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, अगर आप राइट में देखोगे हैबिटेशन कंटिन्यूड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल यूनिट। अब यहाँ तक पढ़ने में ही मतलब एक ही पैराग्राफ ऑलमोस्ट पढ़ने में मुझे समझ में आ गया है कि एक ही दोनों आंसर है। I don't need to look at the second and third paragraph really. I can simply skip and check कि पहले कि habitation continued after decline of political unit, क्या इसका कोई भी evidence मुझे यहाँ पे मिल रहा है? अगर इसका evidence नहीं मिलेगा तो मैं वापस A में जाऊंगा। But let me check the evidence. So I skip two paragraphs completely without reading them, and I come to this part and I see the occupation of such sites continued through the time of Ghana's Islamic successor states. And this is a clear cut indication that habitation continued after the decline of political unit, and this is the answer. So without wasting much time with the technique of skimming and scanning, हमने ये find out कर लिया। skimming और scanning कहाँ पे काम नहीं आ पाती है, स्पेशली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में हमें क्या करना चाहिए कि एक पार्ट ले लेना चाहिए, जैसे टाइप्स ऑफ सीजन टिकट्स और टिकट ड्यूरेशन एक पार्ट है, तो मैंने इसको दो बार पढ़ूंगा। दो बार पढ़ने सॉरी पहले तो ऑब्वियसली इट्स बेटर टू लुक एट दी क्वेश्चंस, ठीक है, एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन देखे फिर आपने दो बार पढ़ा और उसके बाद आप वापस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लगा हाँ ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है, ठीक है। सो क्विक रीडिंग 2 times will really help you in true false not given and some other exercises also. ये आप अपने खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल जाएगा और इससे क्या होगा एक मोनोटनी टूट जाएगी बार बार कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि आपने क्वेश्चन देखे ही नहीं, आपने देखा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आया, चलो पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं चेक करूंगा क्वेश्चन। क्योंकि कुछ लोग ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन तो ऐसा बोल रहा है, मैंने ये पढ़ा, माइंड कभी कभी फज हो जाता है, स्पेशली आप टायर्ड हैं तो। अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की सेक्शन सी में अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉरी सेक्शन 3 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो माय बेस्ट सजेशन है कि आप पहले तुरंत क्वेश्चन मत देखिएगा, आप पहले थोड़ा पैराग्राफ ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि माइंड काफी फज करेगा आपकी इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। Now, as we are talking about the tiredness in IELTS, yes, that is true. Reading करते करते आप टायर्ड हो जाते हैं, बोरियत भी आती है, इसलिए आपको थोड़ा लंबा बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए भी हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वो हमारे लिसनिंग में कैसे हेल्प करेगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। So let me see if there's anything more to be told about reading right now. During the test. Yeah, be ready. The reading passages get tougher as the section proceeds. Try to complete the section 1 and 2 in 34 minutes. वो हमें बता दिया, ठीक है। Challenging your short-term memory, listening to short audio scripts and repeat. ये आपके listening में भी help करेगा. Read an article and make self notes for what you remember. ठीक है। अब देखिए, make self notes from what you remember. तो हम जब इस sorry
Okay, yeah, coming back to the screen, one moment. Okay, so अभी हमने ये वाला जो टॉपिक पढ़ा था, which was actually हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, but फिर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ कुछ वर्ड्स थे जो आपने पढ़े हैं, अब हम लोग ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे उसके बारे में। टिचिक ओ लाटा, ठीक है, ये तो चलो नेम है, नो नीड टू डू मच, बट यहाँ पे ट्यूमुलाई क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एंड दे टॉकिंग अबाउट सर्टेन स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलो लेट अस सी कि क्या होता है ट्यूमुलाई, राइट। तो हम इसको गूगल करेंगे, and let us just go to Google Baba and search what it can mean. That's a different thing. Just a moment. I need to probably put another keyword which is matching the article. तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है ऑब्वियसली, बट द थिंग इज कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी कि एग्जैक्टली व्हाट इट मेंट। ट्यूमुलाई, ओके। Sometimes you don't even get the answers on the internet, but फिर भी हमें वो क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी है। व्हाई? सो दैट हमें आदत बनी रहे कि हाँ चेक करेंगे क्या है, क्यों है, लर्न करते रहेंगे। और इसमें ना आपको ये भी फील होगा कि दे समथिंग टेक होम फ्रॉम IITS। सी these small mounds जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ट्यूमुलाई है, एंड दे वर बिल्ट मेनी, ये एक्चुअली फिजिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं, अफ्रीका में बहुत पुराने होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हमें कुछ पता लगा, अब हम ज्यादा आर्टिकल के साथ रिलेट कर पाएंगे। ओके, so coming back to the presentation, and it's 4:15 now, so I don't think it will take more than 20-25 minutes to finish the rest of the to talk more about listening. Just a moment. Okay, challenge your short-term memory. Yeah, so challenge your short-term memory. Why? ऐसा क्या हो जाएगा कि हम चैलेंज करेंगे अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को? रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो और आप व्हेन यू गो बैक टू द पैसेज, ठीक है, टू क्रॉस चेक कि ऐसा है कि नहीं वैसा है एक्सेट्रा, ठीक है, तब जैसे मैं बोला इंफॉर्मेशन फज हो जाती है, या आप पढ़ने के बाद भी आप वापस देखते हो अच्छा मैंने क्या पढ़ा था, ये ऐसा रिलेशन है कि नहीं। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो काफी शार्प होनी चाहिए। तो हाउ कैन वी sharpen our short term memory? By listening to short audio scripts and repeating them. बेस्ट मैं आपको बताऊं ये आप कहाँ से कर सकते हैं, आपने खुद के जो IELTS के लिसनिंग के टेस्ट हैं उनके आप ऑडियोस 5-5 सेकंड या 7-7 सेकंड के लिए प्ले कीजिए एंड सी कि एग्जैक्टली मैं उसको रिपीट कर पा रहा हूँ कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक सेंटेंस दिखा है दैट उसने 5 सेकंड कुछ बोला, identify when to skim and scan, when to identify when to skim and scan and when to quick read twice. The reading passages get tougher as section proceeds. ये पार्ट हमने सुनी, ठीक है, क्या, और 7 सेकंड की सुनी थी, 7 सेकंड्स पे, आई डोंट थिंक इट वाज मोर देन दैट। आप कुछ सोच देखना एग्जैक्टली क्या मैं वही रिपीट कर सकता हूँ। आप सोचोगे आइडेंटिफाई द रीडिंग पैसेजेस एंड स्किम एंड स्कैन, तो ऐसे करके होगा। मगर जब आप ज्यादा अटेंशन पे करने लोगे, when you start actually doing this activity more, आपकी listening बहुत sharp हो जाएगी। ये not only is going to help you in listening, it is actually going to help you in speaking also. Why? Because good listeners are good speakers. पहले तो आप उस accent को, उस pronunciation को match करना चाहोगे जैसे उसने बोला है। So if I'm trying a different accent, like must read at least 2 novels of different genre the weeks before writing IELTS. तो ये चीज आप कैसे करोगे? It becomes a good acting game. It becomes a great way to sharpen your short-term memory. And like I said, it's amazing feeling कि
किसी ने कुछ बोला है और आप एग्जैक्टली एज इट इज रिपीट कर सकते हो. इट गिव्स अ ग्रेट सेंस ऑफ मेमोरी कॉन्फिडेंस. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, एक्सटेंसिव रीड करना, डोगो न्यूज ले लीजिए, मस्ट रीड एटलीस्ट 2 नॉवेल्स, 2 डिफरेंट जॉनर की. कैसे आपको करना है? अगेन ऑडियो बुक्स के साथ क्लब कीजिए उनको. ऑडियो बुक सुनिए, आधा आधा आपने क्या बोलते हैं रीड किया. रिमेंबर, लव एंड अप्रिशिएट. ज्ञान की उपज प्रेम नहीं होती है. तो लर्निंग तब मजबूत होगी जब आप उसको लव कर पाओगे, अप्रिशिएट कर पाओगे. नहीं हो रहा है तो स्माइल करते रहो, हो जाएगा. आइडेंटिफाई द, ये हमने बताया ड्यूरिंग द टेस्ट हमें क्या कर सकते हैं. और भी चीजें हैं. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कुछ आप ऑन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको और डिटेल में किया जा सकता है. बट बिकॉज दिस इज यू नो शॉर्ट सेशन, सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू as much as information on what kind of things to follow. Challenging a short-term memory, listening to audio scripts and repeating them. Again, these things have multiple benefits. ठीक है, और आपको मैं काफी ये चीजें अभी लिसनिंग में भी बताने वाला हूँ. फिर भी एक क्वेश्चन अभी मुझे लग रहा है कोई पूछ सकता है कि हम रीडिंग के टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करें. ठीक है, देखिए रीडिंग के जो टेस्ट हैं वो आपको एक तो ielsonlinetest.com इज अ वेरी गुड वेबसाइट, आप नोट कर सकते हैं ielsonlinetest.com. और दूसरी मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ mini-iels.com, mini-iels. Okay, so Mini IELTS is another great platform जहाँ से आप देख सकते हैं काफी different articles देख पाएंगे. The best part about this web page is once you select the solution part, वो explanations काफी होते हैं. और दूसरा भी ielsonlinetest.com, so that is also a pretty good way, pretty good actually website to IELTS online tests. Okay, but remember one thing, mini IELTS के तो आप टेस्ट एज अ फन एक्टिविटी कर पाओगे, बिकॉज 12 क्वेश्चन होंगे, 10 एक्टिविटी होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे. आपकी जो ट्रू प्रैक्टिस है वो 3 मेजर टेस्ट जो आप दोगे अपने हफ्ते में, एवरी वीक 3 मेजर टेस्ट, वो आपकी एक्चुअली ट्रू प्रैक्टिस होगी. आई थिंक आई हैव अ question from Astha. So Astha, do you want to say or chat your question? So I'm taking questions before I move to the listening section. Yeah. So you guys, you can tell me or tell me about it. Okay, cool. So that was about reading. और फिर रीडिंग में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं. मैच हेडिंग होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, टेबल फ्लो चार्ट, डायग्राम्स होते हैं. स्पेशली अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट तो 100% होने वाला है. मिनी IELTS इज द ग्रेट वे. मिनी IELTS में आप जाओगे, स्पेशली अपने कंप्यूटर पे जाना. इट्स नॉट एज गुड ऑन द फोन टू बी फ्रैंक विद यू, बट आप मिनी IELTS पे जाओगे तो आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम दिखेगा. मे बी आई कैन शेयर द स्क्रीन अगेन. चलिए, it just becomes a little multiple. Let me share the screen once again. Hold on. Okay, so you open a new browser, okay, and you simply type mini-iels.com. पहले आपसे पूछेगा do you want to practice listening or reading. Say do you want to practice reading now. और आपको कहीं ना कहीं तो डिफिकल्टी आ रही है, ट्रू फॉल्स नॉट गिविंग क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, या यस नो नॉट गिविंग क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, या मान लीजिए प्लान मैप डायग्राम लेबलिंग आपसे बहुत अच्छा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो आप बस ये सेलेक्ट करो, सर्च फॉर देम, and it will show you results of mini tests like 12 questions, 4 questions, 13 questions like that. And then over here also 6 questions true false ke hai, 7 questions plan map ke hai. Hit the thing, take the test button. It is no login, कोई झंझट नहीं है. See डायनासोरस के बारे में आ जाता है. I must say, you know, अगर आपको IELTS की प्रैक्टिस करनी है तो डायनासोरस के बारे में तो जितना जानना है जान लो, क्योंकि आर्कियोलॉजी, डायनासोरस, बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत हॉट टॉपिक्स है अभी IELTS में. ठीक है, और इन सब चीजों के बारे में आप ज्यादा पढ़िए. आर्कियोलॉजी के बारे में जो आपकी जो वोकैबुलरी है वो ज्यादा बढ़ाओ. ठीक है, as long as you are doing this. So over here you can notice there are questions, and then at the end you can also check the solutions in the mini IELTS. Okay, coming back.
to my presentation. Now let's quickly come to the listening part. ठीक है. So this is a scorecard of listening. अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, आपको 7 इन लिसनिंग 7 इन रीडिंग मांगा हुआ है, तो आप 30 आंसर्स करेक्ट आपके होने चाहिए ईच में. बट जनरल में जैसे मैं दिखाया था स्कोर कार्ड थोड़ा डिफरेंट था. सो एकेडमिक का स्कोर कार्ड लिसनिंग का काफी रीडिंग के तरह ही है. 40 क्वेश्चंस में आपने अगर 30 क्वेश्चंस आंसर सही किए हैं तो आपको 7 बैंड मिल जाते हैं, 7.58 सो ऑन एंड ऑन 9. सो माय एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग, काफी चीजें जैसे आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि कुछ भी करो, कितने सारे पे टेस्ट हो, लिसनिंग बढ़ती नहीं थी. ठीक है, तो हमने काफी हॉलिस्टिक टेक्निक्स यूज किए और वही टेक्निक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैं बताए हैं एंड दे हैव गिवन मी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स. मतलब 7 बैंडर 9 लेके आ रहा है. ठीक है, 6 बैंडर 7.5 लेके आ रहा है. दिस काइंड ऑफ मैजिक्स आई हैव सीन इन लिसनिंग स्पेशली. सो नंबर 1 टेक्निक जो मैंने आपसे शेयर करी थी वो ऑडियो बुक की फास्ट सुनने की. जैसे कि मैं आपको इमॉर्टल्स ऑफ मेलुवा की ऑडियो बुक दिखा था, उसको आप फास्ट जब सुन रहे होते हो तो यू गेट कंफर्टेबल विद 1.5 स्पीड. कुछ लोग तो 1.75 भी कर पा रहे हैं, वो तो मैं फ्रैंकली खुद नहीं कर पा रहा हूँ, बट 1.75 इज आल्सो ऑसम अगर आप कर सकते हैं. तो 1.75 पे आप कंफर्टेबल हो गए. अब आईएल्स की लिसनिंग आ जाती है. आप सोचिएगा ये तो बहुत धीरे बोल रहा है, इसमें तो मैं कितनी सारी चीजें कर लूँ, खाना भी बना दूँ साथ साथ. ठीक है, तो एक स्पेस फॉर मल्टीटास्किंग आपकी बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही मस्त एक फन एक्टिविटी जाती है. आपको लगता है आईएएस की लिसनिंग तो बहुत आसान है, बस थोड़ा पढ़ना है साथ साथ और करना है. ठीक है, तो लिसनिंग टू ऑडियो बुक एट अ फास्ट स्पीड ऑफ 1.5 स्पीड, और आपको 20 मिनट्स का टारगेट लेना है. आपको 20 मिनट लगातार सुनना है, क्योंकि आपकी लेंथ ऑफ लिसनिंग मतलब कंसंट्रेशन चैलेंज हो रहा होता है. ठीक है, having said that, let's see what not to do. Not seeing the signs of stress. Yes, listen कर रहे हैं ऐसे बैठ के. See what am I doing? I'm tensing my shoulder, lean कर रहा हूँ ऐसे नहीं. आपको उल्टा होना है, आपको ऐसे बैठ के सुनना है. माउस आपका या ऐसा होगा पेपर. आंखें बंद करना है, आंखें बंद भी कर सकते हो और दूर से अच्छे से विजन लेके आप पढ़िए. ठीक है, बी रियली कूल while listening. Keep breathing, keep smiling. Sitting in a motivated mind and lazy body. आप सो के उठे, ठीक है, अच्छा चलो सर ने बोला था होमवर्क दिया था 9 बजे क्लास है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या मान लीजिए आपको खुद ही करना है, आपको काम पे जाना है, कॉलेज जाना है, उससे पहले एक लिसनिंग एक्टिविटी करना है. ब्रश किया, लेजी, मम्मी को बोला कॉफी ले आना. ठीक है, और उसके बाद आप जाके बैड ऐसा आपकी बॉडी है और मैं तो मोटिवेटेड हूँ. ठीक है, नहीं होने वाला भगवान. ठीक है, बॉडी इज द की टू लिसनिंग. इसके बारे में और थोड़ा मैं अभी डिस्कस करूंगा. लिसनिंग टू थिंग्स दैट वी ओनली लाइक. यस, वही प्रोग्राम्स हम देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वही चीजें हम सुनते हैं. ठीक है, जो हम सुनना चाहते हैं. अलग अलग चीजें हम नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है पॉडकास्ट. स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट कैम्ब्रिज ने जो पॉडकास्ट बनाए हैं वो तो बेस्ट है. 3-3 मिनट के हैं, उसमें आपको बहुत फायदा होगा, मैं आपको बता दूंगा. कॉन्स्टेंटली गिविंग लिसनिंग टेस्ट, लाइक आई सेड, वो कभी फर्क नहीं पड़ता उससे. So I'm looking at the chat box again and saying if there's any question. There is much confusion between false and not given. Please suggest something for that. Okay, so I'm coming back to the reading part of false and not given. False में ना वो ये कहते हैं, देखिए पहली बात ये है, मैं आपको फर्स्ट टेक्निक ये बताऊंगा. Look at sample solutions. कभी भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को आप खुद से स्टार्ट मत करो. अच्छा चलो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का आ गया है, हम करने लगते हैं. नहीं, आप एटलीस्ट 5 टेस्ट का ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के सोल्यूशन खोल के बैठो. ठीक है, आईएएस ऑनलाइन टेस्ट में बहुत आसानी से दिया हुआ है ये. इनफैक्ट मिनी आईएएस में भी है. जब आपने देखा कि इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है और इन्होंने इसको ट्रू किया है, मार्क इसको फॉल्स किया है, नीचे जाके कमेंट्स पढ़िए कम्युनिटी ने कहाँ पे कंफ्यूजन की है. और इसी चीज जहां पे आपको कंफ्यूजन आता है, सर मैंने ये देखा कि चलो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ऐसा बताया है, यस नो नॉट गिवन में ऐसा है, ये तो मुझे ऐसा ही, मुझे काफी सिमिलर लग रहा है, यू नो थिंग्स लाइक दैट. आपको जाके मेंटर से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं till date I am seeing both mini IELTS online tests, IELTS online tests, even some other places they have given wrong answers. ठीक है,
और कम्युनिटी लिंक्स में भी आप जाकर उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो पहली बात यह है कि ओरिजिनल टेस्ट कहते हैं कि उन्होंने पेश कर रखे हैं, काफी जगह होते हैं, मगर एग्जैक्टली वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। एक अगर आप दूसरा, आप जब मेंटर के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो आपका थोड़ा बुद्धि खुलती है कि अच्छा आपने ये वर्ड मिस कर दिया। एक्चुअली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का मैं एक अलग ही सेशन देता हूँ, 1.5 आवर, ऑलमोस्ट 1 आवर का, क्योंकि हम लोग काफी टाइप्स ऑफ ट्रू फॉल्स देखते हैं। सो इट्स नॉट द बेस्ट टाइम फॉर मी टू गेट इनटू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बट मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि ट्रू ट्रू स्टेटमेंट तो फिर भी समझ में आ जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट ऑपोजिट इंफॉर्मेशन कह रहे हैं वो। इट इज आप अगर डेफिनेशन में देखेंगे, यू आर लुकिंग एट अ कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब वो एग्जैक्टली झूठ है, ठीक है। नॉट गिवन क्या होता है, हमेशा एक छुपा हुआ होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्लाइड की बात करें, तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं क्लियरली दैट देयर आर रेड फॉन्ट्स एंड देयर आर ब्लैक फॉन्ट्स, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी है, देयर आर रेड एंड ब्लैक फॉन्ट्स ऑन द स्क्रीन। अब ट्रू ट्रू चेक करना है तो ऐसा स्टेटमेंट होगा कि when you see the IELTS slide of Praktika, you obviously see that there are red and हाँ ब्लैक फॉन्ट, तो आपने ट्रू कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि यू कुड सी, ठीक है, बोलेंगे यू कुड सी मोर ब्लैक फॉन्ट्स दैन रेड फॉन्ट्स, ठीक है, आप देख सकते हो। ऑब्वियसली आप देखोगे तो देयर आर मोर ब्लैक फॉन्ट्स देन रेड फॉन्ट्स, ठीक है, और आपको लगेगा तो ट्रू ही है, मगर ये नॉट गिवन हो गया। बाय यू कुड सी, हो सकता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कोई तो कंपैरिजन नहीं करी, ना उन्होंने ऐसा कोई सजेशन किया था उसमें। तो ऐसे नॉट गिवन होते हैं। दूसरे नॉट गिवन कैसे होते हैं, वो बोलेंगे कि as soon as you open the Praktika, sorry, what I can say, presentation, uh, you will see red, yeah, sorry, sometimes, so बोलेंगे sometimes you will see red and blue font, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज अब उन्होंने रॉन्ग आंसर ही बोला है, रेड एंड ब्लू बोला है, तो रॉन्ग आंसर है, मगर वो रॉन्ग नहीं है, वो भी नॉट गिवन है। क्यों? समटाइम्स we got to look at for those words for not given। तो not given हमेशा हाइड कर रहा है, ये बताने के लिए कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है, मगर वो एडिशनली होती है। नॉट गिवन फॉल्स नहीं हो सकता, नॉट गिवन एग्जैक्टली ट्रू भी नहीं होता है। तो आपको आने लगेगा, मगर अगेन आई सेड ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप 3 से 4 टेस्ट उठा लो, ठीक है, उनके सोल्यूशन ही देखो, सिर्फ सॉल्व भी मत करो, एक्सप्लेनेशन देखो कि उसने नॉट गिवन क्यों दिया है एक्सेट्रा, और कहीं आपको डाउट है तो मेंटर से डिस्कस कीजिए, 100% आपको उसका मेल करने लगेंगे। डेफिनेटली आज भी जब मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करता हूं तो मेरे मिस्टेक्स होते हैं। मैं ये नहीं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 20 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के, तो मेरे भी 2-3 मिस्टेक होते हैं, मतलब मेरी एक्यूरेसी भी आज 90% ही है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी मैंने रेयर स्टूडेंट्स ही देखे हैं, जिनसे मैं भी कभी कभी इंप्रेस हो जाता हूँ, क्या तुमने कैसे सोच लिया। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग। आपका एम ये होना चाहिए कि आपकी 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, या 85% से ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि एक सेक्शन में अगर आपने एक मिस्टेक भी करी है, ठीक है, तो भी आपने सिर्फ 3 मिस्टेक करी है IELTS में, आपने 6 मिस्टेक्स करी हैं और आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं, तो भी आप 7.5 बैंड ले रहे हो। बट हाँ, जनरल ट्रेनिंग में you got to be really careful. You cannot afford more than 3 mistakes in general training. Okay, so yeah, no other questions are showing up on regarding reading. So as we were talking about listening, sitting with a motivated mind, don't do that, don't and you got to see the signs of stress। आप स्माइल नहीं कर रहे ना, ये सबसे बड़ी बात है। आप जब भी आईएलटीएस के लिसनिंग पे बैठो तो आप थोड़ा स्ट्रेच करो हैंड्स, अपनी बॉडी स्ट्रेच कीजिए, इधर उधर थोड़ा शेक कीजिए हैंड। शेक करने से ना हमारी प्राण एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, तो शेक कीजिए, फील योर बॉडी, कनेक्ट विद योर माइंड। अगर आपको लग रहा है स्क्वाट्स करने की जरूरत है फॉर मोर एनर्जी, स्क्वाट्स करके आराम से बैठिए, ठीक है। और हाँ, वहां पे क्या करना है, आईएलटीएस एग्जाम में आपको उज्जयी ब्रीथिंग करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप गूगल कीजिएगा उज्जयी सांस, उज्जयी ब्रीथिंग, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी नॉर्मली एनर्जेटिक होगी। नहीं भी है तो भी आपको अपने पोस्चर के बारे में और ज्यादा आपको अभी अवेयर होना पड़ेगा फॉर गुड रीडिंग। मैं इसके बारे में आपको अभी और थोड़ा सा बताता हूँ।
तो कॉन्स्टेंटली गिविंग लिसनिंग टेस्ट इस हमें नहीं करना है. Strategies for listening. Have a quick read and I'll just let you know. Okay. Improve the range of listening. So range of listening में आपको पॉडकास्ट सुनने चाहिए, आपको ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन न्यूज बीबीसी सुननी चाहिए. ठीक है, पॉडकास्ट एंड ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज. पॉडकास्ट आप डाल दो, बस नॉर्मल गूगल पे डालो पॉडकास्ट ब्रिटिश काउंसिल, आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आएंगे. सबके अलग अलग रेंज ऑफ लिसनिंग है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं. इट बी अ फन एक्टिविटी. तो रेंज ऑफ लिसनिंग में आपकी वोकैबुलरी भी आ जाती है, जार्गन से इतने सारे हो जा रहे हैं. बेस्ट चीज है कि आप YouTube में टेड स्पेस ईडी डालिए, जहां पे ऐसे मैंने मेंशन किया हुआ है, और टेड ईडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टेड ईडी चैनल के जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंट के टॉपिक्स हैं, वो आपको मस्ट लिसन है. इट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आईएल्स में, आईएल्स के टेस्ट में. इनफैक्ट ये हो चुका है, आईएल्स का टेस्ट टेड ईडी टॉक के ऑडियो से ही आया है. So more chances of this to happen. TED Talks are the best way. Get used to listening to a range of accents. हाँ, जैसे मैंने बताया है. Take a holistic approach. What is a holistic approach? How do you challenge your cognitive powers? ये सब आप कर सकते हैं multitasking से. आपको थोड़ा सुनने के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज करने की हल्की फुल्की आपको अवेयरनेस में आना पड़ेगा. जैसे आप सुनते सुनते आपने कुछ काम कर लिया, आप टीवी देखते देखते कुकिंग कर रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको थोड़ा अपनी मल्टीटास्किंग करानी है. अगर आप मल्टीटास्किंग लिसनिंग के साथ नहीं कर रहे हैं, देन यू मस्ट गो इनटू सम फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योगा, स्पोर्ट्स, डांसिंग, एंड बेस्ट थिंग इज हठा योगा. इसके बारे में और तुरंत बताता हूँ. जैसा मैंने बताया था कि यू नीड टू इंप्रूव योर शॉर्ट टर्म मेमोरी 5 to 7 seconds, improve the length of listening. इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि आप 120 मिनट्स के लिए 1.5 स्पीड पे ऑडियो बुक सुनेंगे, राइट. एंड मस्ट पुट द फिजिकल बॉडी टू एक्सरसाइज. अब पूरा जो गेम चेंजर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द गेम चेंजर ऑफ योर लिसनिंग इज योर फिजिकल बॉडी, इट्स नॉट योर माइंड. खुद आप नोटिस कीजिएगा, कभी अगर आपको दौड़ के बस पकड़नी पड़ी थी, कभी अगर आप क्या बोलते हैं ऊपर मतलब दौड़ के अपने घर के अंदर ही आए, सडनली आपको देख आप ऑब्वियसली आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और आपको छोटी छोटी चीजें अच्छे से सुनाई देती हैं, समझ में आती है. आपको पता लगता है फैन कितनी स्पीड पे चल रहा है, आपको पता लग जाता है कि नेबर्स के घर से कितनी आवाज आ रही है. सडनली यू आर जस्ट अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन. अगर आप बस में दौड़ के चढ़े तो आपको पता लग जाएगा बस का कब गियर चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ. So how is it possible? Suddenly आपकी listening capacity enhance हो गई. Why? Because your body is energetic. अब आप listening एग्जाम में जब जाते हैं तो आप बहुत डल वे में जाते हैं. I mean, आपको बैठना पड़ता है 30 सेकंड्स के लिए वहां पे, सॉरी 30 मिनट्स के लिए ऑलमोस्ट बैठना पड़ता है, फिर लिसनिंग स्टार्ट होती है. तो आपको अपनी कमर सीधी करनी पड़ेगी. वहां पे तो जाके आप कूदने नहीं वाले हैं, एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं. दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट योगा एंड प्राणायाम. हठा योगा पहले क्या करेगा, हठा योगा में 5 आसन आ जाते हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ चैट बॉक्स पे, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. दीज आर 5 पावर आसन्स. 5 पावर आसन्स आर वज्र आसन, then we have वीर आसन, वीरभद्र आसन, tree pose and butterfly pose. अगर आप ये आसन करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड कंफ्यूजन में नहीं आएगा. काफी लोग कहते हैं सर मैं ये कंफ्यूज जाता हूँ, वहां कंफ्यूज जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं बोलता हूँ ठीक है, काम करो, लिसनिंग का टेस्ट थोड़ी देर वीर आसन में बैठ के, पहले वीर आसन में बैठे, वज्रासन में बैठे, उसके बाद करो. माइंड कंफ्यूजन में जाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों. आपको पता होता है ये सही है गलत है, आप कर रहे होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्यूरेट आंसर्स आते हैं, बट आपका जो माइंड वेस्ट करता है ना टाइम, सी है या ए सेलेक्ट करूँ, बी सेलेक्ट करूँ, अरे ये भी सही है, ये जो टाइम वेस्ट होता है ना, ये बंद हो जाएगा आपका. ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है. दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी बहुत देर तक बैठने की आदी हो जाएगी. आईएएस एग्जामिनेशन में आपको काफी देर तक बैठना पड़ता है.
और आप अभी यूज टू नहीं है, तो अगर आप आसन में बैठ सकते हो 20-20 मिनट के लिए, तो आईएएस का एग्जाम तो बहुत आसान हो जाएगा आपको बैठना। ठीक है, तो आसन प्रैक्टिस कीजिए। आसन से काफी सिद्धियां होती हैं। हम तो इंडियन से हम योगा के बारे में ऐसा बात कर सकते हैं। अगर मैं ब्रिटेन में बात कर रहा होता तो वो बोलते कि यार आईएएस पढ़ा रहे हैं कि योगा पढ़ा रहे हैं, राइट? बट लाइक आई सेड, इवन द ब्रिटिश काउंसिल सेज दिस दैट, अच्छा ब्रिटिश काउंसिल क्या उन्होंने टेक्निक क्या बोली है, मॉर्निंग वॉक। अगर आप आईएएस 101 देखेंगे जो कैम्ब्रिज ने रिलीज करी है, उन्होंने बोला है कि मॉर्निंग वॉक कीजिए अपना आईएएस लिसनिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक और योगा में क्या ज्यादा फर्क पड़ जाता है, राइट? सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और मैंने मेंशन किया नॉट जिमिंग। व्हाई नॉट जिमिंग? बिकॉज जिमिंग makes your makes your मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लूज होती है। नॉर्मली जो इंसान ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा एथलेटिक होता है, वो ज्यादा अच्छा सुन सकता है। आपने देखा होगा कि जो मोटे ताज या खट्टे खट्टे लोग होते हैं, उनसे आप ज्यादा देर तक बात नहीं, लंबी कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं, वो 5-10 मिनट बोल के चुप हो जाते हैं। मगर जो थोड़े लीन होते हैं, थोड़े स्लिम होते हैं, वो काफी देर तक बोल भी लेते हैं, काफी देर तक सुन भी सकते हैं। तो सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको, अगर आप जिमर हैं तो आपको कुछ टाइम की जिमिंग नहीं करनी है। आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, पर प्लीज डोंट डू जिमिंग। मतलब डोंट पंप अप योर मसल्स। ओके, you need to familiarize yourself with different task types, and that means mini IELTS will be a really good approach. Smile and breathe deeply. Remember to smile after every section. अगर आपने ये सारी टेक्निक्स भूल गए, आप भूल गए कि मल्टीटास्किंग करनी है, आप भूल गए टेडी टॉक सुनने थे, आप ये भी भूल गए कि ऑडियो बुक क्या होती है, आप ये भी भूल गए कि मैंने योगा योगा वोगा क्या बताया था, मगर एक चीज अगर आप इस सेमिनार से लेके जाना चाहते हैं या वेबिनार से लेके जाना चाहते हैं, इज स्माइल। डोंट लूज दैट स्माइल इन लिसनिंग। जब आप अभी भी ट्राई कर लो ऐसे मुंह करके, थोड़े से सुनो मेरे को, ठीक है, 2-4 मिनट सुना चाहिए, ठीक है, देखना कितना मन करेगा सुनने का, बिल्कुल मन नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं लड़का से बहुत सुंदर लड़की भी बन जाऊंगा तो भी ज्यादा मन नहीं करेगा सुनने का आपको। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमारा माइंड हमारे स्माइल से एक कनेक्शन रखता है फॉर ओपन हियरिंग एंड ओपन, मतलब एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन मेंटेन रखता है। So you got to literally smile more, and that is the best, I would say, thing that I can tell you guys. Okay, so this was more or less about listening and how you can select different types of listening activities and also practice them on mini IELTS. आप IELTS ऑनलाइन टेस्ट से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पूरा टेस्ट ही अटेंड कीजिए। That's my best suggestion. Remember to again learn from your mistakes. Listen भी कीजिए, रिपीट करके 2-2 हफ्ते में सेम टेस्ट आपको रिपीट करना चाहिए। Don't always look for new tests. Okay, so I want to take some last questions for listening before telling some really important updates about IELTS and us. Anyone has any questions in listening? Okay, so we are left with 17 participants. But guys, be here. Let me tell you some really interesting things over right now. First of all, we are going to have the next master class for writing, and that's going to be exactly again at 3 p.m. आप जानते हैं writing सबसे difficult है, so my suggestion is that tell your buddies to attend the master class, right? The webinar that's going to happen next time. No, sorry, that's not writing. Next week is speaking, and then we have writing, and we have many other webinars as well as events coming up. Please follow the links. They'll show up in the chat box soon, or we will be emailing it to you shortly. And here's the best part, that yes, in first attempt you can get your IELTS score अगर आपके पास guidance है, अगर आपके साथ कोई mentor जुड़ा हुआ है। नहीं तो मैंने खुद ही इतने सारे स्टूडेंट्स की सेशंस लिए हैं जो
4th अटेम्प्ट के बाद मेरे पास आते हैं, 3rd अटेम्प्ट के बाद आते हैं। और जब मैं उनको बोलता हूँ देखो 2 महीने आपको भी डेट लेनी नहीं है, तो आप वो अपने मेंटर का सुनते हैं। यू सी माय पॉइंट। सो आपको आप क्या बोलते हैं, अपने से मत डिसाइड कीजिए कि आपको डेट कब लेनी है। आप एक बार अपने एटलीस्ट मॉक टेस्ट करवा लीजिए अगर आपको पूरी सेशंस नहीं करना है। So the IS mock tests are also being conducted by Practica. You guys are already connected, and that's as you can see here. And the best part is that on the one-on-one, I won't say one-on-one, but only personalized sessions. We have on online platform we have just 3 to 4 students in one session, and the offline sessions are there. Practica's I would say complex, right? So this is also mentioned, and the best part is that for 72 hours now we have this 20% off going. So you can really await for this in the next 72 hours and be a great experience in IELTS. There's a lot of fun involved in IELTS जो हम मिस कर देते हैं प्रैक्टिस में. There's so much learning involved जो हम मिस कर देते हैं. And I tell you, IELTS is not just an English language testing system. It's a personality test. Because like I said, जैसे आपको थोड़ा योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकली यू वांट टू बी फिट फॉर लिसनिंग. आपको लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए थोड़ा रीडिंग भी करनी चाहिए, सो दैट यू कैन यू नो व्हाट यू आर प्रोबेबली हियरिंग, राइट. आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा है. सिमिलरली आपने स्पीकिंग किसके साथ करेंगे, यू नीड मेंटर्स और ट्रेनर्स फॉर दैट. एंड राइटिंग को जो आप लिख रहे हैं वो आपको करवाना है. सो वीकली बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं. Great faculties, amazing environment. So my suggestion is please go for this. And what else we have? Yep, that's more or less. So has anyone got any questions finally? Yes. So when we are doing mock tests, we are not just doing like checking your answers and telling you ऐसा है. हम आपका स्पीकिंग भी कराएंगे और उसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा, लाइक व्हाट इज दैट. आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेक अ मॉक टेस्ट एंड टेल यू ठीक है आपका बैंक 6.5 है या आपका 0.7 है. नो, the person is going to sit with you for some more time. I'm going to explain you that what are the factors that you need to keep in mind. कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, क्या क्या चीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं. So that's the great benefit of mock test. Number 1 in speaking. Number 2 in writing. राइटिंग में आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे कि आपको इस ये मटेरियल देख के आप ये पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस. या आप क्या बोलते हैं, आपको फॉर एग्जांपल टास्क 1 में ज्यादा फोकस चाहिए, टास्क 2 में चाहिए. So of course, not only you'll get your score in the mock test, you also get your feedback. And it's a pretty good 1 to 1.5 hour session, the mock test, right? The examiner, it's a one-on-one session also. All right, I'll just wait for a couple of more minutes for any more questions जो भी आपको mind में pop up करेंगे. And yes, as you can see, you can book your free demo session with us to assess your compatibility with online sessions or offline sessions. You are most welcome. You are most welcome. And I am a strong advocate of online learning because आपकी timing काफी flexible हो जाती है. So okay, so I have a question that do we okay. Do we have speaking mock test? Okay, thank you. Okay, thank you. How long is the session? We make sure that you it's for 1 month. So 1 month training has 22 sessions. Okay, guys. So I will not take much of your time now. Thank you very much, all of you, for joining. And do please connect back to Practica for any questions. And remember that the next one is going to be for speaking, the next masterclass. I'll be there here. And it was, I really appreciate all your time, all the participants. Thank you very much.